କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେଇପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ସେସନକୁ। ବାକି ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଲିଙ୍କକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆକୁ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କହି କହି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଜର ଯେଉଁ ମିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ମିଳିବନି। ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କହିପାରିବା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟମ୍ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣମ୍ କିମିତି ଉଚ୍ୟତେ। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟମ୍ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣମ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ ନା ଶ୍ରବଣମିତି ଉଚ୍ୟତେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭାଷାୟାଃ ପ୍ରାଥମିକ କୌଶଳମ୍ କିମ୍ ଭବତି। ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କୌଶଳଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାଷାୟାଃ ମାନେ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ଆମର ଚାରିଟା କୌଶଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ, ପଠନ, ଲେଖନ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୌଶଳଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ଭିତରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ରହୁଛି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ। ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସରେ ସରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରାମାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ସେସନକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ କମ ଦିନ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣାତ୍ ପରମ୍ କିମ୍ ଜାୟତେ। ଶ୍ରବଣାତ୍ ପରମ୍ ଶ୍ରବଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରବଣାତ୍ ପରମ୍ ଶ୍ରବଣ ପରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କହିବା ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରିବା। ଶ୍ରବଣାତ୍ ପରମ୍ କିମ୍ ଜାୟତେ, ଶ୍ରବଣ ପରେ କ'ଣ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶ୍ରବଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାପରେ? ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣାତ୍ ପରମ୍ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅର୍ଥ ଅବବୋଧାତ୍ମିକା, ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ନାଁ ମେନସନ୍ କରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅଯଥାରେ ନାଁ ଜଣଙ୍କର କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥ ଅବବୋଧ ସେ ବାଧକ କୋଉ? ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାରେ ବାଧକ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅର୍ଥ ଅବବୋଧ ସେ ବାଧକ କୋଉ? ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାନ୍ତି ଏଠି। ତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ବାଧକ କିଏ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅର୍ଥ ଅବବୋଧ ସେ ବାଧକ ଦି ଜଣ। କିଏ କିଏ ସିଏ? ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରହିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୋତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନ କହିଲା ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅର୍ଥଟି ବୁଝିବାରେ ଯଦି କିଏ ବାଧକ ହେଉଛି ବା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଦି ଜଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା। ଶ୍ରୋତାକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବକ୍ତାକୁ ସଠିକ ରୂପରେ କହିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଅର୍ଥଟିକୁ ନ ବୁଝି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନି ତାପରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଉଭୟ ଦାୟୀ। କହିବା ଲୋକ ବି ଯେତିକି ଦାୟୀ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ। ଏ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବହି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସେଇଠୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଛି ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣେନ କିମ୍ ଭବତି। ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କହିବା ଏଠି ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରିବା। ସୁପ୍ରଭାତମ୍, ନମସ୍ତେ। ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ପ୍ରଦୂଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣେନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ୍ୟୁନମ୍ ଭବତି। ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣେନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ହେଇପାରୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଭାଷା ବିକାଶ କସ୍ୟ ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷା ବିକାଶ କରିବାର ଯଦି ଅଛି ସେଇଠି ଭୂମିକା କାହାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଭାଷା ବିକାଶରେ କାହାର ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? କହିବା ଏଠି ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରିବା। ଭାଷା ବିକାଶ କସ୍ୟ ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷାକୁ ଯଦି ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ନା ଭାଷା ବିକାଶରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ। ଭାଷା ବିକାଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଭାଷା ବିକାଶରେ କାହାର ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ଚାରିଟା ଯାକ କୌଶଳ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ଯାକ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରୂପରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତଥାପି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି
ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ରହୁଛି। ଶିଶୁ ପ୍ରାରମ୍ଭେ କୁତଃ ଶୃଣୋତି, ପିଲାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ କେଉଁଠାରୁ ଶୁଣିଥାଏ? ପିଲାଟି ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ କୋଉଠାରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭାତ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥାଏ। ପରିବାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କଣ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। स्तोत्र ग्रहणे ही लोके शब्द प्रसिद्ध कस्य उक्ति, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा। जदि एभली क्वेश्चन जदि आपनकर एथर आसुची माने काहार उक्ति बोली जदि क्वेश्चन पचारुची कि पूर्व भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा एभली क्वेश्चन बहुत थर पचारि सारलानी। तो जदि एथर क्वेश्चन रोचे ताले एभली क्वेश्चन किछि आसी पारे। स्तोत्र ग्रहणे ही लोके शब्द प्रसिद्ध कस्य उक्ति, ए उक्तिटी काहार अटे? कहबा राइट आंसर आपनकर एठी कोन रहउची? तो एठी आपनकर राइट आंसर होउची महर्षि जैमिनी। आपण मानक एठी आंसर कहि दउची जो माने मते कहउछन बढ़िया। महर्षि जैमिनींकर ए उक्तिटी अटे जहाँकि मीमांसा दर्शन रही। श्रवण कौशल से विकास से कहा समस्या सन्ति? श्रवण कौशल जब विकास देखिए से भितर कहार अधिक समय मुख्य समस्या कौन थाए? श्रवण कौशल विकास रे समस्या कौन कौन रही? तो फास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट से रोचे कौन ना गुरुंकर मुखर शुणवार अच्छी माने गुरुंकर मुखर जो ठीक ठाक शुणुनि ताहले सी मध्ये गोटे समस्या। परिवेश प्रारंभिक समय जो देखिबा कौन कौन एठी रहउची सी होउची आपनकर परिवेश, एटा आपनकर कौन बोली कहि परिबा जो पेडागोजी टाइप रो क्वेश्चन रही पारे। तापर क्षेत्रीय भाषार प्रभाव, तापर पुनी थरे शारीरिक क्षमता, छात्रर अज्ञानता, पारिवारिक समस्या, ये सब होउची आपनकर श्रवण कौशल विकास रे समस्या। परिवेश, क्षेत्रीय भाषार प्रभाव, बाह्य भाषा मानकर प्रभाव, शारीरिक अक्षमता, छात्रर अज्ञानता, पारिवारिक समस्या इत्यादि होउची आपण मानकर श्रवण कौशल विकास रे कौन समस्या अटंती। श्रवण कौशलम कतिविधम, आपन श्रवण कौशल केते प्रकार जानछोती? हम समस्ते अधिक डिस्कशन करिया। श्रवण कौशल होची आपनकर दी प्रकार। कौन से दीटा श्रवण कौशल आमर कौन कौन ना श्रवण कौशल दी प्रकार। गोटे होची आपनकर सामान्य श्रवण, आउट होची आपनकर चयनात्मक श्रवण। से विषय रे अधिक डिस्कशन करियन ता बेसिक रे क्वेश्चन आगु रहिची। ठीक अछि। कक्षायां स्वल्प स्मरण शक्ति संपन्न छात्रः शिक्षकस्य मुख निसृत वाणी बारंबार श्रुत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति इति कीदृशं श्रवणम्। एटी क्वेश्चन ने बुझी पारथिबे समस्ते। क्लास रे गोटे अल्प बुद्धि रो गोटे पिलाडी अछि जे कि टीचर मुखरु वाणी माने कथा गुडी बारंबार सुनि कि ठीक रूप रे ज्ञान पाउची। एटा आपनकर केउ प्रकार श्रवण? तो जदि कहबा एटा को प्रकार श्रवण जाउची मेंशन करबा। ई होची आपन मानकर कोन ना सामान्य श्रवण। आपण माने मुको मध्ये जदि किछि एटा बुझुनी कोनोस विषय कि नुवा नुवा पिला थांती तो ସେମାନେ कौन करती ना प्रारंभिक समय रे कौन कहूँ ना आपण मैंने गोटे विषय जो बुझा पड़नी आप गोटे कौन गोटे विषय बारंबार शुणुं शिक्षक मुखर गोटे विषय बारंबार शुणुंट तापर कौन कर विषय टी आप कौन कर अल्प माने स्वल्प स्मरण शक्ति छात्र हेल्ले सठिक रूप से ज्ञान आहरण कर सी आप कौन वास्तविक रूप से सी हूँ सामान्य श्रवण। ये एक्चुअली बहुत जन कौन कहले पर्याप्त श्रवण ये पर्याप्त श्रवण नहीं पर्याप्त श्रवण या भर सामान्य फरक रही। पर्याप्त श्रवण आपंकर कौन कहूँ ना गोटे विषय को बहुबार एवं उत्तर रूप से शुणा को आप पर्याप्त श्रवण बोली कहला तार रिगार्डिंग आगु क्वेश्चन आसीबो। एटा मन रखन ये हूँ आपंकर कौन ये हूँ आपंकर सामान्य श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अधिक डिस्कशन करियो कहीं क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाइए। सामान्य श्रवण कतिविधम सामान्य श्रवण आपंकर केते प्रकार मुख्यतः नहीं ये हूँ आपंकर पांच प्रकार हूँ आपंकर सामान्य श्रवण कौन कौन सी ना सी हूँ आपंकर पर्याप्त श्रवण, शांतचित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, बाधाहीन श्रवण। एपरि भाव आपंकर ये हूँ केते प्रकार ना ये हूँ आपंकर पांच प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा के चते तो कौन से पांचटा कहीदेली पर्याप्त श्रवण, शांतचित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, बाधाहीन श्रवण। अधिक डिस्कशन करवानी कहीं पूर्व जानी विषय गुड़िक। पर्याप्त श्रवण नाम कि पर्याप्त श्रवण अर्थ कौन? ए क्वेश्चन पुणी थे आसला पर्याप्त श्रवण अर्थ कौन? एकम विषय बारंबार उत्तम रूपेण श्रवण पर्याप्त श्रवण मिति उच्यते। गोटे विषय को बारंबार एवं उत्तम रूप से शुणा को आपंकर कौन बोली कहगला ना पर्याप्त श्रवण बोली कहगला। बुझीपारे समस्ते। तो केते बेले होता है ना जदि गोटे शिक्षक कौन देखती ना गोटे पिला कौन करुच्ची ना विषय टी कम बुझुची ठीक से बुझी पारुनी तो से शिक्षक कौन करती ना से विषय टी बारंबार बारंबार कही था जहाँफल कौन हो पाठ्यदान सफल होता है। सी हूँ आप पर्याप्त श्रवण। पर्याप्त अर्थ हूँ आप बुझीपारे अधिक। परवर्त समय अच्छी शांतचित्त श्रवण। शांतचित्त श्रवण नाम किम?
शांतचित्त श्रवण अर्थ कौन? तो शांतचित्त श्रवण आपन क्वेश्चन एटी सिंपल रूप रखी देछि एक्चुअली क्वेश्चन आपन के डिफिकल्ट रही थाए परीक्षा रे कोन करथे ना परिभाषाटा एक्चुअली दे देथे कोन दे दिथिबो ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम तप्तरः संयतेन्द्रियः एही उक्तिटी केउ श्रवण सहित संपृक्त थाए एही भली क्वेश्चन आसीबर एतर एसएसबी एग्जाम रे जे आपन के टिके क्वेश्चन बुले के रखि पारे जे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः एही श्लोकटी सहित केउ श्रवण संपृक्त रहउची तो तो ये कौन को शांतचित्त श्रवण रे ना छात्र मन को कौन कर ना धीर स्थिर करके विषय को जदि स्मरण करुच्ची शुणुची श्रवण करुच्ची ताहले अबोध्य विषयटी मध्य कौन होची ना तार ताको बुझा मध्य पड़ी जाउची धरंतु आपण गोटे विषय जो बुझा पड़ुनी किंतु आपण जो कौन कर मन को स्थिर करके ताको जदि आपण पढुचंती ताहले आपनकर सी कौन हिजिबो ना अवबोध विषय मध्य आपनको आराम से बुझा पड़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटी किछि आपनको ऑप्शन मिलिबनी केवल आपण आंसर लिखियो पड़िबो श्रद्धावान लभते ज्ञानम केन सर्वणन्य सह संपृक्त क्वेश्चन टी देखंतो जो भली आपण कहउथिले से भली आसीगला श्रद्धावान लभते ज्ञानम ये आपनकर केउ श्रवण सहित संपृक्त नि होची आपनकर शांतचित्त श्रवण सहित संपृक्त रहिछि अधिक माने कहूनी काहे कि ना पाखा पाखी 200 रु ऊपर क्वेश्चन अछि नै होची शांतचित्त श्रवण। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एकाग्र श्रवणम नाम किम एकाग्र श्रवण माने कोन एकाग्र श्रवण अर्थ कहुଯାଇଛି कौन ना शिक्षकों सम्मुख में बसी मन को चंचल न कर इंद्रिय गुड़ी को शांत कर आम जो श्रवण करती एकाग्र श्रवण कहला। हाँ बहुत बढ़िया कौटी लिखाई कहते एकाग्र अर्थ हूँ इंद्रिय को एकाग्र एक माने समस्त इंद्रिय को कौन करवा एक करवा कौटी एक करवा ना कहते ये शिक्षकों सम्मुख में बसिकी मन जदि आमर चंचल अच्छी चंचल मन को स्थिर करके जदि इंद्रिय को आम शांत कर कौन करवा जदि गोटे विषय को शुणा ताहले जदि गोटे अवबोध्य विषय रही आमको बुझा पड़ तो सी हूँ आप एकाग्र श्रवण गोटे श्लोकटी रही गीता रही संकल्प प्रभावान बोली गोटे श्लोक रही देखिए पड़े कहीं क्वेश्चन आपको सही टाइप पचारि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर रही अनौपचारिक श्रवण नाम किम अनौपचारिक श्रवण अर्थ कौन बोली कही अनौपचारिक श्रवण रे कहूँ कौन ना निर्दिष्ट विषय विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य विषय संबंध जदि रोचे ताहले कौन होची ना से विषयटी को से ग्रहण करिथाउची अनौपचारिक अर्थ बुझी पारथुवे समस्ते सी आपनकर कौन वास्तविक रूप रोची ना सी आपनकर विषय वस्तु सहित माने बेले बेले ये किसी विषय आसते विषय विषय बहिर्भूत होइतिबो किंतु पाठ संपर्कीय रहउची ताहले मध्य कौन करबा दरकार ना ग्रहण करबा दरकार। अनौपचारिक अर्थ होची आमर शिक्षण तीन प्रकार रही गोटे हूँ औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक औपचारिक अर्थ होची आम फॉर्माली क्लास रे बसिक जो पाठ पढ़ुछन सी आपन करला औपचारिक अनौपचारिक अर्थ होची आपन धरंतु न्यूज पेपर किछि पढ़ी कि विषय वस्तु कोन ग्रहण करचंती आपन माने टीवी देखि किछि विषय वस्तु ग्रहण करचंती सिनेमा देखि किछि विषय वस्तु ग्रहण छि होची आपन कर अनौपचारिक से बेले अनौपचारिक श्रवण अर्थ कोन अनौपचारिक श्रवण अर्थ होची बेले बेले शिक्षक कोन करंती किछि जिंस एभली कोंती जाय कि हमर पाठ सहित किछि रिलेटेड ही न थाए किंतु आमर कौन थाए ना ज्ञान संबंधी थे तेणु आम शुणी था लास्ट श्रवण कौशल जो सामान्य श्रवण 5 नंबर विषय बाधाहीन श्रवण अर्थ कौन तो बाधाहीन श्रवण संपर्क में कहवा कौन कौन बाधाहीन श्रवण शब्दटी भी आप बुझीपारे यही टाइप आपको सिचुएशन क्वेश्चन पचारा आराम से करेंगे किसी कष्ट हेनी लगुनि जे सिचुएशन क्वेश्चन आसो जमी 2023 मसीह आपंकर OSS प्रथम सेसन टी करते जो क्वेश्चन करते से तो क्वेश्चन आसोनी कि SSB जो क्वेश्चन करे प्रायतः क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करें बहुत माने सहज क्वेश्चन करें कि कहीपर ये कौन करुच्ची देखो तो बाधाहीन श्रवण विषय कौन कहुना बाधाहीन श्रवण विषय कहुई शब्द प्रदूषण नथिबा कौनसी स्थान में बसी छात्र प्रत्यक्ष भाव में जहाँ श्रवण करें बाधाहीन श्रवण बोली कहुए बाधा अर्थ हूँ बाधा बाधा नथिबा श्रवण कौन कौचे ना शब्द प्रदूषण नथिबा कौनसी श्रेणी रे बसिकी जदि छात्रटी प्रत्यक्ष रूप से जहाँ श्रवण करें बाधाहीन श्रवण बोली कहुला। ठीक अच्छे आपण मैंने पाठ पढ़िया समय आप पाखे दुकान टी दुकान बाड़ी बजार जब रोचे से कौन हो शब्द आस ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कायेन मनसा बुद्ध्या केवलम इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तो आत्मशुद्धये
एतत् केन श्रवणेन सह संपृक्त तो ये आपन देखो गोटे श्लोकटी देदेला श्लोक देकी आपन क्वेश्चन पढ़ी पारे आपन श्लोक देकी जदि एमती क्वेश्चन पचार देला ताले आपन भाबिबे जे बा एइभली मध्ये पचारि पारे केन श्रवणेन सह संपृक्त न देकी आपन एटा क्वेश्चन कोन करि पारे गोटे मिनिट हाँ आपन श्लोक न देकी जदि एठी आपन कोन श्रवण बोली शब्दटा न देकी आपन जदि पचार देला वाक्यम कुतः आगच्छति वाक्यटी कोठु आछि बोली आपन जदि पचार देला आपन भाबिबे जे एटा आउट ऑफ सिलेबस बोली कि किंतु एटा आपन श्रवण कौशल गोटे माने गोटे अंश बोली जानिया दरकार कोठी अछि एटा नै एटा आपन गीता रे अछि आपन कोन अछि नै गीता रो ही लाइन टी ग्रहण करा जायछि तो किंतु वास्तविक रूप रे कहा सहित ये रहिछि नै होछि आपन बाधाहीन श्रवण सहित कोन देछि लाइन टी देखंतु कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये तो ये लाइन टी आपन केउ श्रवण सहित संपृक्त रहउछि नै ई श्रवण टी आपनकर संपृक्त रहउछि बाधाहीन श्रवण सहित ठीक अछि तो अधिक चर्चा करबानी एहीपरि किछि रही पारे आपण पूर्व जदि प्रस्तुत रहउछन ताहले किछि असुविधा नै बहुत भलो हबो बहुत जण माने उपकृत आराम से ही पारिबे ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चयनात्मक श्रवण नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कोन ना चयनात्मक श्रवण नाम किम पूर्व भी आपन डिस्कशन समय कहितले आपन श्रवण दुई प्रकार रहिछि कोन गोटे होछि सामान्य श्रवण आउटा आपन हला चयनात्मक श्रवण तो एठी कहिछि चयनात्मक श्रवण नाम किम कहबे एठी आंसर को मेंशन करबा तो देखिबा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहबा चयनात्मक श्रवण नाम किम तो चयनात्मक श्रवण आप सिंपल रूप में कही देछि आपण मानकु चयनात्मक श्रवण अर्थ होछि चयन दीटा शब्द अच्छे ये चयन बोली गोटे शब्द अच्छे शिक्षक क्लास रे पढ़ाया समय आपण मानकु कोन करूछंती ना विभिन्न प्रकार क्वेश्चन को आपण मानकु पचारि थांती क्वेश्चन को पचारिया समय विभिन्न उदाहरण देई थांती जो उदाहरण गुडी आपनकर माने शिक्षादान सहित मध्ये एतेटा संपर्कित न थाए तो से गुडी आपनकर कोन ता भितर आपण कि जिंस ग्रहण करंती आपण कि कोन करंती ग्रहण करन थांती तो पाठ्यदान समय शिक्षक मुखरु श्रुत विषय वस्तु मध्यरु तार मन पसंद शिक्षा को छात्र ग्रहण करने को चयनात्मक श्रवण कहुए शिक्षक कहवा समय आपको धरतु आप क्लास रे और टीचर पढ़ाइबा समय आपको बहुत गुड़े उदाहरण देता सब गुड़ाक उदाहरण कौन पॉइंट टू पॉइंट आप मन थाए कि ना गोटे दीटा आप मन रखी था कहीं चयन करते चॉइस करते धरतु आप आमाजन फ्लिपकार्ट जिनस किनुते आप जिनस कि बहुत गुड़े फिल्टर लगे लगे चेक करते जे यहाँ भल अच्छे ना सही भल अच्छे सही भल अच्छे ना भल अच्छे कि से भितर आप कौन गोटे ही चयन कर किनती ताही हूँ ये क्लास घटी था जो गोटे पिला टीचर ठर कि शुणुची से समय से कौन कर जो जिनसा भल लगे सी ग्रहण कर तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहा चयनात्मक श्रवण कतिविधम चयनात्मक श्रवण आपंकर केते प्रकार तो चयनात्मक श्रवण आपंकर से भली ना 5 प्रकार जो सामान्य श्रवण थिला एभली चयनात्मक श्रवण आपंकर 5 प्रकार कौन कौन ना सी होची समस्यामूलक नूतन शब्द संरचनात्मक पद व्याकरण रूप श्रवण संदर्भ वाक्य श्रवण भल भाव में आपने श्रवण कौशल यही दीटा जहाँ पार्ट सामान्य श्रवण और चयनात्मक श्रवण को पढ़ी जातु निश्चित रूप से आप एक मार्कर क्वेश्चन रही रही श्रवण कौशल अन्य कौशल अपेक्षा बहुत इंपोर्टेंट हो श्रवण कौशल कौन कौन ना समस्यात्मक सॉरी चयनात्मक श्रवण केते भाग भाग करा 5 भाग गोटे समस्यात्मक श्रवण नूतन शब्द श्रवण संरचनात्मक पद श्रवण व्याकरण रूप श्रवण एवं संदर्भ वाक्य श्रवण लास्ट ईयर मध्ये एभली क्वेश्चन आपनकर गोटे थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केचते अर्थ से पांचटा कौन कौन कहीदेली आपन पूर्व समस्यामूलक नूतन शब्द संरचनात्मक व्याकरण रूप एवं संदर्भ वाक्य तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा समस्यामूलक श्रवण नाम कि क्वेश्चन रही एठी आपन मानकर समस्यामूलक श्रवण शब्दटीर अर्थ कौन अटे गोटे सामान्य समस्या रही कहबे से पर्यंत हां समस्यामूलक श्रवण नाम कि पाठ्यवस्तु समस्यामूलक अर्थ होची पाठ्यवस्तुर केतेक अंश दुर्बोध हेले माने बुझा जदि पढ़िबनी छात्र माने कोन करंती से गुडको समस्यामूलक वा कठिन विषय होइते सही विषयटी को पाठन करने समय ताकू जदि छात्रटी कौन कर मनोजोग पूर्वक शुणुची मन ध्यान दी जो से विषयटा को शुणुची ताले तो कौन बोली कहला ना समस्यामूलक श्रवण बोली कहला बुझीपारती समस्ते कौन ये कही समस्यामूलक अर्थ कौन ना गोटे विषय जब आप डिफिकल्ट रहा जब आप गुरु पाखु गुरु ध्यान सहित से विषय पढ़ाऊँ आप मनोजोग पूर्वक जो शुणुंट सी समस्यामूलक श्रवण बोली कहला नेक्स्ट क्वेश्चन रहा नूतन शब्द ग्रहण नाम कि यही क्वेश्चन देखो यही क्वेश्चन आपको एमतीका क्वेश्चन आसबनी जे आपंकर कौन ना नूतन शब्द ग्रहण डायरेक्ट क्वेश्चन आसबनी ये आपंकर परिभाषा पचारिदेव नूतन शब्द ग्रहण परिभाषा शब्द कौन रही ना प्रसंग पठन समय कौन हो जो सब कष्ट शब्द गुड़िक आसुच्च श्रेणी क्रमशः से गुड़ी कौन हो बोधगम्य हो
तो उच्च श्रेणी आगत नूतन शब्दावली दुर्बोध व व्यवहार पे कष्ट हेले ताको अत्यधिक आवेगर श्रवण करने ध्यान दि जाए। नूतन शब्द आप पाठ पढ़िया समय क्वेश्चन ये आसो पिलाटी पाठ पढ़िया समय तार किसी कष्ट शब्द आसला किसी नुआ शब्द आसला सी क्यों शब्द सहित संबंधित तो सी हूँ आपंकर कौन ना नूतन शब्द ग्रहण। आप छोट क्लास पढ़ुं से समय आप गोटे पोर्टफोलियो बनाऊँ शब्द सूची गोटे बनाऊँ जे सब कष्ट शब्द गुड़िक बोलिकी बुझापी चेष्टा कर उच्च श्रेणी जो शब्द गुड़िक आसूँ व्यवहार कष्ट साध्य होती तो सी हूँ आपंकर कौन नूतन शब्द ग्रहण। धरतु नूतन शब्द अर्थ शब्द टी बुझीपारे समस्त नूतन शब्द हूँ नूत हो नूतन हम नूतन शब्द ग्रहण नाम कि नुआ शब्द टी ग्रहण करवा। छोट पिला थिबा समय निम्न स्तर में पिला माने कौन करती जो नुआ शब्द शुणिले गोटे पोर्टफोलियो कर लिखती गोटे शब्द सूची करती कि बड़ जो हो जाती से समय जो कष्ट शब्द गुड़िक आसे से गुड़िकर समाधान पे से कौन करती ना वाक्य व्यवहार करने मतलब कष्ट अनुभव करते नूतन शब्द ग्रहण बोली कहगला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है क्वेश्चन आपंकर 2023 OSS जो एग्जाम करथिला तार सेकंड ट्राई एग्जाम रे थिला क्वेश्चन संरचनात्मक पद संपर्क में। संरचनात्मक पद नाम कि संरचनात्मक पद अर्थ कौन कहबा ये आंसर कौन रोच कहबा। तो संरचना शब्द टी प्रारंभिक समय देखो आराम से बुझीपारे। नमस्ते कौन ये कौन संरचना अर्थ हूँ रचना करवा रचनात्मक पदटी अर्थ कौन रचना अर्थ कौन कौन ना प्रारंभिक समय रे जिते कौन भाषा और विषय गुड़ी को माने कौन करवा सरल करने केतेक कौन करें ना केतेक ज्ञात पद को प्रयोग करी विषय रे पूर्वटी छात्र कौन एत खास कर ध्यान दे न थाए आवश्यकता दृष्टि से कौन करते पद गुड़िक व्यवहार एवं पदर पद व्याकृति प्रति लक्ष्य करिकी से कौन करते गोटे गोटे नुआ शब्द मध्य से रचना करें ताही हूँ आपंकर कौन ना नूतन पद रचना। पिलाटी निजर आवश्यकता अनुसार जो पद गुड़िकर व्यवहार करें पद व्याकृति प्रति लक्ष्य दे थाए से हूँ आपंकर कौन ना संरचनात्मक पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्याकरण रूप नाम किम व्याकरण रूप श्रवण एक्चुअली व्याकरण रूप अर्थ होची व्याकरण रूप श्रवण नाम किम। व्याकरण रूप अर्थ बुझीपारे समस्ते ये व्याकरण संपर्क में चयनात्मक श्रवण आप देखिपे फास्ट शब्द ही बुझीपारे जहाँ जहाँ कष्ट शब्द रहा शुणा नुआ शब्द टी शुणिले सी है आप चयनात्मक श्रवण। संरचनात्मक श्रवण अर्थ आप गोटे नुआ शब्द शुणिले जो आप प्रयोग करने बाहर किसी गोटे मानने नुआ स्टाइल सी है आप संरचनात्मक पद श्रवण। व्याकरण रूप श्रवण अर्थ कौन कौन ना प्राथमिक स्तर में संस्कृत भाषा और धातुर सठिक प्रयोग प्रति ध्यान दि जाए न था किंतु परवर्ती समय कौन करते नियम अनुसार साधन करी नर वृक्ष इत्यादि सूत्रु कौन कर प्रयोग विषय जानी था सी हूँ आपंकर व्याकरण रूप श्रवण। फास्ट फास्ट आप कौन करते ना जो पिला स्कूल फ्यूचर पढ़ाई जी 8th क्लास संस्कृत पढ़ाई फास्ट मिल तो अष्टम श्रेणी आप कौन करेंगे ना फास्ट पाठ अच्छी परिवेश परिवेश शब्द आपंकर कौन अच्छी ना से मुख्यतः कौन आसो ना आपंकर विषय सहित आपंकर व्याकरण से रिलेटेड होती आप कौन करेंगे ना फास्ट आप पढ़ेदेवे परिवेश पाठ में आपंकर प्रयोग अच्छी मातृ शब्द आप देखिपारे मातृ शब्द प्रयोग से देती मातृ शब्द प्रयोग सहित आपको सी कौन शिक्षा दूसरी मातृ शब्द पढ़ाया समय कहे मातृ शब्द भली आपको यामातु शब्द सुश्रु शब्द यातृ शब्द इत्यादि शब्द हूँ आपंकर कौन व्याकरण रूप श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संदर्भ वाक्यम नाम कि संदर्भ वाक्य अर्थ कौन कहवा आंसर कहवा ये मेंशन करवा बहुत जन आंसर एक्चुअली आसुनी ना मत ये शो करूनी आंसर। अच्छा देखिए थे क्लिक करके हाँ कहबे ये आपंकर कौन राइट आंसर रोचे संदर्भ वाक्य श्रवणम नाम किम संदर्भ वाक्य श्रवण अर्थ कौन। हाँ तो कौन कही संदर्भ वाक्य श्रवण अर्थ रे ना संदर्भ वाक्य श्रवण अर्थ रे कही विषय वस्तु आलोचना समय शिक्षक बेले बेले श्लोक आपंकर कौन कहे श्लोक गुड़ी मझे मझे उदाहरण प्रदान करते छात्रटी से सब कौन करते ना निज खातार लिखि मुखस्थ कर वाक्यर पूर्ण मात्रा आंशिक प्रयोग करते कौन ना संदर्भ वाक्य श्रवणम। संदर्भ वाक्य अर्थ कौन कौन ना क्लास चलिए समय शिक्षक मझे मझे गोटे उदाहरण देता श्लोकटी कही था सेगुड़ी को आपको जो व्यवहार आरंभ करते सी हूँ आपंकर कौन ना संदर्भ वाक्य श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रवण कौशल से विकास आए किम कर्तुम शक्य श्रवण कौशल तो श्रवण कौशल से विकास आय किम कर्तुम शक्य श्रवण कौशल विकास में कौन करें किसी क्वेश्चन आस टीचिंग टाइम रे एग्जांपल देवे ठीक अच्छे
तो श्रवण कौशल विकास है किम कर्तुम शक्य श्रवण कौशल विकास पे हम कौन कौन करें मेंशन करबा एठी आंसर को 29 नंबर क्वेश्चन आम श्रवण कौशल विकास में मैंने मुख्यतः आम टीएलएम आम जहाँ पेडागोजी गोटे पार्ट रही टीएलएम टीचिंग लर्निंग मेटेरियल्स जहाँ रही सहायक उपकरण गुड़िक आम अधिक अधिक व्यवहार करें कौन कौन करें प्राथमिक स्तर में शिशु गीत हास्य कणिका वीर कथा इत्यादि शुणेबा क्वेश्चन आपको रही पारे प्राथमिक स्तर में पिला शिशु गीत हास्य कणिका कथा इत्यादि शुणेबा आमर लक्ष्य कौन रही माध्यमिक स्तर में आम शिक्षक कौन करें ना करुण वीर हास्य इत्यादि कथा शुणई पारे पिला जहाँद्वारा पिला श्रवण कौशल विकास हो पार श्रवण कौशल से विकास से उद्देश्य यानी कि हाँ बहुत बढ़िया रेडियो गोटे आपंकर हो पारे विकास पे आप कौन कौन करें उद्देश्य कौन रही श्रवण कौशल विकास से उद्देश्य यानी कि उद्देश्य कौन कौन रही ना उद्देश्य हूँ शब्द उच्चारण पिलाटी जब ठीक रूप से शुणव ताले सठिक रूप से प्रयोग करेंगे शुद्ध उच्चारण आम लक्ष्य रही शब्द भंडार से बुद्धि पिलाटी जिते शुणव से शब्दर प्रयोग जापर शब्द भंडार बुद्धि महत्वपूर्ण तत्व गुड़िक ग्रहण यह सब हूँ आप श्रवण कौशल विकास उद्देश्य अटे भाषा कौशलम भाषण कौशलम सॉरी भाषण कौशलम कतमम कौशल भाषण कौशल केते नंबर कौशल तो भाषण कौशल हूँ आपंकर सेकेंड कौशल द्वितीय कौशल भाष्यते अनया इति का भाष्यते अनया इति का भाष्यते अनया इति भाषा एठू आपण माने आंसर को मेंशन करि परिबे कहीं बहुत छोट छोट आंसर आपण मानक आसलानी भाषण एका कला भवति तो एटा ठीक अछि किछ कहे दरकार नहीं क्वेश्चन ही हेनी भाषण एका का भवति ना भाषण गोटे वास्तविक रूप में कौन अटे ना कला अटे आपण माने गत किछ दिन मध्य बहुत गुडी भाषण आपण माने सुनी थिबे कहीं ना जिते निर्वाचन चलता से समय विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार शैली भाषण दौले भाषण वक्ता किम भवितुम क्षमो भवति भाषण द्वारा लोकटी किम भवितुम क्षम भवति भाषण द्वारा लोकटी कौन होगा सक्षम होते क्षम अर्थ होती सक्षम कह आंसर को मेंशन करबा भाषण द्वारा एक्चुअली वास्तविक रूप से कौन होता है विद्यार मापदंड मापन करा भाषण द्वारा कौन होते ना भाषण है ना वक्ता किम भवितुम क्षम होती ना विद्यार मापदंड करने सक्षम होता विद्या प्रमाण मुखम भाषण च कस्य उक्ति विद्या प्रमाण मुखम भाषण ये क्वेश्चन आपंकर बहुत थर डेस पिला पचार तो विद्या प्रमाण मुखम भाषण च यहाँ कार उक्ति नहीं हूँ आपंकर चाणक्य उक्ति ये क्वेश्चन ये पर्यंत आसीनी ये पर्यंत आपंकर कौ भाई क्वेश्चन आसबार ना अधा पचार डेस प्रमाण मुखम भाषण च तो ये हूँ आपंकर कहार उक्ति ना ये हूँ आपंकर चाणक्य उक्ति मन रखि था ये हूँ कहार उक्ति ना ये हूँ चाणक्य उक्ति मुखम भाषण विद्या प्रमाणम टिके उल्टा ही थाई पारे किछि किछि जगह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मुख निसृत वाणी कि मुखर जो बाणीटी बाहरिला ताको आमे केउ बाणी कहि थाउ मेंशन करबा एटी शीघ्र शीघ्र आंसर कहि कहि जिबा जेतु एटा सिंगल सिंगल वर्ड र आंसर रही मुख निसृत वाणी का मुख निसृत वाणी का भवति बहुत बढ़िया मुख निसृत वाणी हूँ आपंकर कौन वैखरी वैखरी हूँ आप मुख निसृत वाणी परावाणिका परावाणी क्या कहुई बाणी चार्टा रूप रही से हूँ आपंकर परा पश्यंती मध्यम वैखरी यहपरी आपंकर चारि भाग भाग कराई तो आपंकर परावाणी बोली क्या कहुआ परावाणी हूँ आपंकर ब्रह्मस्वरूपा संकल्प रूपा ब्रह्मस्वरूप वाणी हूँ आपंकर कौन ना हूँ आपंकर परावाणी आपने यूट्यूब अपेक्षा आपने संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही की फॉलो करूँ ये सब विषय से डिटेल वर्णना कर अधिक माने लाभदायक हो पारे पश्यंती वाणी क्या भवती कहबा ये पश्यंती वाणी किए अटे ना परावाणी सामान्य रूप से प्रकाशमान हेले ताहा होची आपनकर पश्यंती वाणी परावाणी जिते सामान्य रूप से कौन हो प्रकाशमान हो सी हूँ आपंकर कौन ना पश्यंती वाणी मध्यम वाणी कौन कहबा ये आप क्वेश्चन गुड़ी कौन थी ना डायरेक्ट परिभाषा देथिबा आपनको सीधा साल क्वेश्चन करिथिबा सत्य संकल्प रूपा पश्यंती वैखरी मध्य अवस्थान करी अनुपात क्रम प्राणवृत्ति को अतिक्रम जी करते सी हूँ आपंकर कौन ना मध्यम वाणी संपर्क कौन कही अंत संकल्प रूपा ही हूँ आपंकर कौन ना मध्यम वाणी वैखरी वाणी का मुख निसृता वाणी आपंकर हूँ प्रकट रूपा हूँ आपंकर वैखरी वाणी मुख निसृता वाणी कौन कहीपर ना वैखरी वाणी बोली कहीपर ये श्लोकटी मन रखि था स्थानेषु विवृते वायु कृतवर्णा परिग्रह वैखरी वाक प्रयुक्तानाम प्राणवृत्ति निबंधना चर्चा अधिक करवानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भाषण कौशल से विकास है कति सोपान सन्ति भाषण कौशल विकास केतटा सोपान रही माने केतटा स्टेज रही जपरि सेठी आपन श्रवण कौशल दुईटा थिला से केतटा रही तो ये कौन रही ना ये आपन तीन टा रही
ଭାଷଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା କୌଶଳ ରହିଛି। ସେ 3ଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖେଇବେ, 2ରେ ସମ୍ଭାଷଣ ଶିଖେଇବେ, 3ରେ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା କରିବେ। ଭାଷଣ କୌଶଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଉପାୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ, ସମ୍ଭାଷଣ, ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କାନି ଚତାନି କ'ଣ ସେ 3ଟା ନା ସେ 3ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ, ସମ୍ଭାଷଣ ଏବଂ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଏଇ 3ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ କୌଶଳର 3ଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରମ୍ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ସଂଖ୍ୟା କତି ବା ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଭୁଲ ଅଛି କହିପାରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନଭେଦ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେତେଟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାମାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଂସ୍କୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 42। କ'ଣ ଆଗକୁ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେତୋଟି ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତୁ 10ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 42। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ 42ଟା ବହିରୁ ବି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବହିରୁ। ପାଣିନିଙ୍କର 14ଟି ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସେଇ 14ଟି ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ୟାକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା 42 ବୋଲିକି। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 9ଟି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର 42ରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 9ଟା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 3ଟା, ସରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 33ଟା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 25, ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଲା 8 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥ 4 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 4। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ତଥାପି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ସିଏ 42 ବୋଲିକି। 42 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କର 9 4ଟା ହେଲା ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆନ୍ସର ମୁଁ ବି ଦେଇଥାଇପାରେ, 45 କହିଥାଇପାରେ, 32 40 ବି କହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିରେ ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷଟି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ 64 ବୋଲିକି। ପାଣିନିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମତ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 40, 63 ବା 64 ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଯାହା ଆମର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଫଲୋ କରିବା। ହର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ହର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କହିବେ ଏଠି ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ହର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି ନା ସ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା ଏଠି ନା 9ଟି ରହିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ଦେଖିବା ଯଦି ଅ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି, ଅ ଇ ଉ ରୁ 4ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଐ ଓ ଓ, ଏ ଐ ଓ ଓ। କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦଶ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅୟୁନ୍ ଆସିଛି, ଆୟୁନ୍ ବୋଲି କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏ ଐ ଓ ଓ, ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଉନି। କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଲ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ଲୁତ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ରୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯିଏକି ହେଉଛି ପ୍ଲୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହାକେ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କୋଉଠୁ ନା এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣାହା କେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି, ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଗର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବର୍ଗର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟବରଳ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ
ନା ବର୍ଗର ମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉମାନେ ନା ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ, ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ, ଏମାନେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ସବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କିମ୍? ସବର୍ଣ୍ଣଟି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ସବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଲା ହେଉଛି ତାଳୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କିମ୍? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତୀୟ ସ, ଦାନ୍ତ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ। ସବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ମୂର୍ଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସିଛି। ବର୍ଣ୍ଣ 1, 3, 5 ଅନ୍ତସ୍ଥ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ତାଲବ୍ୟ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଲବ୍ୟ ହିଁ କହିଲି, ତାପରେ ଦନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୂର୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା। ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ କିମିତି ଉଚ୍ୟତେ? ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ନା ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପଧା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାମ କିମ୍? କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ ଧାତୁ ନାମ ଅନ୍ତେ କିମ୍ କସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଭବତି? ଧାତୁର ଅନ୍ତରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି? ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଦେଇଥିବେ, ତାହା ହେଇପାରିବ। ତ କ'ଣ କହୁଛି କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଏ? ନା ତିପ୍ତସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ତିଂ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପରେ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁ? ନା କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଧାତୁ ପରେ ତିପ୍ତସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁ? ନା କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗୁଣ ନାମ କିମ୍? ଗୁଣ ଅର୍ଥ କହୁଛି ଓ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ରୁ ସ୍ଥାନରେ, ସରି, ଗୁଣର ସୂତ୍ରଟି ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବା। ଅଦେଂ ଗୁଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂତ୍ର ପଚାରିବାର ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ତଥାପି ଆମେ କେବଳ ଜାଣି ଦେଇଥିବା 1, 1, 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଣିନୀୟ ଇଏର ସୂତ୍ର ଅଟେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ଇ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଏ ଆସୁଛି, ଅ ପରେ ର ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଅର ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ଗୁଣ ହେଉଛି। ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର। ନ ପଚାରି ପାରେ ମେ ବି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ସିଲାବସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ମାନେ କିଛି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ମଧ୍ୟ PDF ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଅଯଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବେ, ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ସନ୍ନିକଟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି। ତରଫ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତରଫ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମିତି ଉଚ୍ଚେତ? ଅର୍ଥାତ୍ ତରଫ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ନା ତରଫ ଏବଂ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ଘ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଘି ସଂଜ୍ଞା କା? ଘି ସଂଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କହିବା ଏଠି ଘି ସଂଜ୍ଞା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଘି ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଘି ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ସଖୀ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା, ହର୍ଷ ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଘି ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଥା ମୁନି, ସାଧୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ପତି ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଭାପତି ବୋଲି ଆସିଲା, ପତି ଶବ୍ଦ ଯଦି ସମାସ ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘି ସଂଜ୍ଞାରେ ଯିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଖୀ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିକି ହର୍ଷ ଇକାରାନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଏବଂ ହର୍ଷ ଉକାରାନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଘି ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେସୁ ଘ୍ୟ ସଖୀ ସୂତ୍ରଟି ରହିଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମେ ବି ପଚାରି ପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତରମ୍ ଆତ୍ମକମ୍ ବୋଧୟିତୁମ୍ ପ୍ରେରୟତି। କିଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ବ୍ୟାକରଣ ପରେ। ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତରମ୍ ଆତ୍ମକମ୍ ବୋଧୟିତୁମ୍ ପ୍ରେରୟତି। ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? କହିବା ଏଠି ଆନ୍ସର, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତରମ୍ ଆତ୍ମା କମ୍ ବୋଧୟିତୁମ୍ ପ୍ରେରୟତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ସେ ମନଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କହିବା ଏଠି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍, ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି? ନା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍
आत्मा कम बोधयितुम शक्नोति आत्मा क्या बुझाई सक्षम होते सी आप राइट आंसर कौन ये मन मन को बुझाई से चेष्टा करते मन को बुझाई थे अर्थटी जानला धरतु कि गोटे माने विषय आसला नुआ शब्दटी आसला धरतु आइसक्रीम आपन किसी गोटे नुआ शब्द शुणिले पयोहिम बोली संस्कृत कहु आपन जो पयोहिम बोली शुणिले फास्ट टी मन भाव कौन पयोहिम अर्थटा जो अच्छा पयोहिम अर्थ होची आइसक्रीम रे गुड़ दीटा मगई दिए खाईदे तो तापर ताहा ही होची आपनकर कौन वास्तविक रूप से अर्थ जानला मन मन माने कौन मन सर्वदा प्रेरणा पाई थे वायु प्राप्ति कुत्र स्वयं शब्द जनयति वायु प्राप्ति पर वायु प्राप्ति कुत्र स्वयं शब्द जनयति कौटी आप वायु प्राप्ति पर शब्द नूतन रूप से ऑटोमेटिक आसी कौन ना हृदय रु आस्था होची वाक रूपम किम नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखिए वाक रूपम कौन वाक रूपटी कौन अटे कहबे एठी राइट आंसर कौन रोची वाक रूपम किम वाक रूपम किम कहबे एठी राइट आंसर आपनकर कौन रोची तो कौन कौन व्याकृप अर्थ हूँ बाणी रूपटी कौन बोली कहूँ ना मुख अवयव आघात प्राप्त हो जो वर्णाकृति उच्चारित होती ताकू ही कौन बोली कहगला ना वाक्रूप बोली कहला बाणी रूप कौन अटे मुख अवयव अर्थ मुखर जो अंश गुड़िक रही जीव स्पर्श करी जो कौन बाहर आप वर्णाकृति शब्द गुड़िक उच्चारण है ताकू ही बाणी रूप बोली कहगला ब्रह्मस्वरूप बाणी कि ब्रह्मस्वरूप बाणी कौन अटे ना सी हूँ आपंकर पराबाणी चर्चा कर यत्र वर्णा न विभक्ता वर्ण गुड़िक जो कौन हो न विभक्त हो नही कही यत्र वर्णा न विभक्ता यत्र वर्ण गुड़िक विभक्त हो न कौन अटे कहवा ये आंसर कहवा ब्रह्मवाणी परावाणी आउ टे ना रही है सरस्वती वाणी मन रखी था ब्रह्मवाणी परावाणी आप ना रही सी हूँ सरस्वती बोलिकी मे भी क्वेश्चन परीक्षा रही पारे यत्र वर्णा न विभक्ता जो वर्ण गुड़िक विभक्त हुंती नहीं सी हूँ आप यत्र वर्णा न विभक्ता तद्भवती आपंकर कौन ना सी हूँ आप पश्यंती बहुत बढ़िया मन रखु ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप संस्कृत शिक्षा शिक्षण शिक्षादान बहीटी को बारंबार कहे आप पढ़ु बोली पढ़ुना देखुना से समस्या में भी होची आपंकर तो से देखो से आपंकर कौन वाक्य आपंकर यत्र वर्णा न विभक्ता जो वर्ण गुड़िक आप विभक्त होनी सी कौन अटे ना सी हूँ आपर कौन ना पश्यंती बाणी वर्ण गुड़िक विभक्त हो न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संस्कृत वर्ण संख्या कियती संस्कृत वर्ण संख्या केते आपण पूर्व डिस्कशन करके सर विषय जान देते संस्कृत वर्ण संख्या केते ना संस्कृत वर्ण संख्या आपंकर रोचे 42 आपको आगु मुझे कहीदे स्वर अक्षराणाम संख्या कति स्वर वर्णर संख्या केते स्वर वर्णर संख्या हूँ 9टी विसर्ग अक्षराणाम संख्या कति भवती विसर्ग वर्ण गुड़िक संख्या केते ना सी हूँ आपंकर डिपेंड कर ऑप्शन उपर धरतु सॉरी सॉरी विसर्गाणाम नुहे ये व्यंजन अक्षराणाम एक्चुअली हवा कथा ये व्यंजन व्यंजन जगह एक्चुअली विसर्ग हो जाए व्यंजन अक्षर गुड़िक व्यंजन वर्ण गुड़िक आप संख्या केते पार्वती जी न न हूँ आप स्वर वर्ण संख्या विसर्ग नुहे व्यंजन वर्णर संख्या केते व्यंजन वर्णर संख्या हूँ आप डिपेंड कर ऑप्शन उपर 33 जो देती 33 ठीक हम जब 25 देती 25 ठीक हम ठीक अच्छे तो डिपेंड कर कौटा देती जो 33 देती 25 देती 33 सहित ही जातु कहीं ये हूँ व्यंजन वर्णर ही पार्ट अटंती किए किए ना आपंकर अंतस्थ एवं उष्ण वर्ण कति अंतस्थ वर्णा उष्ण वर्णा सन्ति उष्णा नुहे उष्ण कति अंतस्थ के उष्ण वर्ण अच्छा अंतस्थ वर्ण संख्या हूँ 4 उष्ण वर्ण संख्या हूँ 4 अंतस्थ किए किए ना य ब र ळ उष्ण वर्ण हूँ स तालव्य स दंत्य स मूर्धन्य स ह ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कति भागे वर्ण विभक्ता तद किम वर्ण गुड़िक आम केते भाग विभक्त कर कौन कौन तो वर्ण को आम केते भाग भाग कले वर्ण समूह को आम 5 भाग भाग कर मन रखी था आम कति भागे वर्ण विभक्ता ना वर्ण भेद आम 5 भाग कराई कौन कौन ना स्वर भेद तापर कौन ना काल भेद उच्चारण स्थान भेद आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न मन रखी था एक 5 भाग भाग कराई 5 भाग मन रखु 8 भाग नुहे 5 भाग कौन कौन 5टा ना सी हूँ आप स्वर स्वर भेद काल भेद उच्चारण भेद आउ तापर प्रयत्न दृष्टि 2 भाग आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न मन रखना 5 भाग स्वर भेदा अनुसार कति प्रकार वर्णा कानिच स्वर भेद अनुसार सी मैंने केते भाग भाग कराई से मैंने कौन कौन अटे
ସ୍ୱରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ସ୍ୱରିତ ସିଏ କ'ଣ ସେ ତିନିଟା ନା ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ସ୍ୱରିତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଯିବା କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି 250 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସରିଲାରୁ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଯାହା ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟାର ଉପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାର ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଯଦି 5G କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ତ କାଳଭେଦ ଅନୁସାରେ କତି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତି କାଳଭେଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା ତେ ଚକେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା କାଳଭେଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 3 ମାନେ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଲା ନା 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏକମାତ୍ର କାଳ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୁଇ ମାତ୍ର କାଳ ଦୀର୍ଘ ତ୍ରିମାତ୍ର କାଳ ପ୍ଲୁତଃ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଲା 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାଳଭେଦ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ନା କାଳଭେଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ଏକମାତ୍ର କାଳ ହର୍ଷବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ମାତ୍ର କାଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ତ୍ରିମାତ୍ର କାଳ ପ୍ଲୁତ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କତି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10 ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହିମାନି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ କମି ଯାଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ଏଠି କିଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ଏଠି କମି ଯାଉଛି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦାନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ନାସିକା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ତାଳୁ କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଜିଭାମୂଳ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ ଜିଭାମୂଳରେ ସରୁଛି କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ତାଳୁ ତାଳୁ ପରେ ଆସିଲା ମୂର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ଦ୍ଧା ପରେ ଆସିଲା ଦନ୍ତ ଦାନ୍ତରୁ ବାହାରୁ ଗଲେ ଓଠ ଓଠରୁ ବାହାରୁ ଗଲେ ନାକ ନାକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ କଣ୍ଠର ତାଳୁ କଣ୍ଠ ସହିତ ଓଠ କଣ୍ଠ ସହିତ ହଁ କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠ ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଜିଭାମୂଳ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ପଚାରିପାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ କତି ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି କେଚ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଭାବିବାରେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ୱାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିବି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି 4 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି 5 ପ୍ରକାର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲି 4 ପ୍ରକାର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଦେଖୁଛି 5 ପ୍ରକାର ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୟତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି କେତେ ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5ଟା ଭାଗ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିଦିଅ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଈଷତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଈଷତ୍ ବିବୃତ ବିବୃତ ସମ୍ବୃତ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ଅନୁସାରେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନାଁ ନେଇକି ତ ପଚାରିବନି 2023ରେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତ ପଚାରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଚାରିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ 5ଟା ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଈଷତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଈଷତ୍ ବିବୃତ ବିବୃତ ସମ୍ବୃତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ନ ଦେଇକି 4 ଦେଲା 4ଟା ଦେଇକି କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା ବୋଲି ପଚାରିଲା ସେଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବେ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଈଷତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତ ସମ୍ବୃତ ଏଇ 4ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କଟିଯିବ ନା ଗୋଟେ କଟିଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉଟା ନା ସିଏ ହେଉଛି ଈଷତ୍ ବିବୃତ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ କତି ପ୍ରକାର କେଚତେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ କି ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ମତି ଭିନ୍ନାଃ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷୟ ତାହା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯିବାନି ଏବେ ସେଇ ଭିତରକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ କତି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ନା ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ 11 ଦେଇଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ 8 ଦେଇଛି ତ ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଲିଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ପ୍ରକାର ବୋଲିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 8 ପ୍ରକାର ରହିଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ 8 ପ୍ରକାର ନା ବିବାର ସମ୍ବାର ଶ୍ୱାସ ନାଦ ଘୋଷ ଅଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କ'ଣ ରହିଛି ନା 8 ପ୍ରକାର ବୋଲି ଦେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କିଛି ମେନସନ୍ ଆସିଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ 11 ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ 8 ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 8 ଦେଲେ 8 ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ 11 ଦେଲେ 11 ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଅପସନ୍ ସେଇଠି ଦେଇଛି ସେଇ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବେ
ठीक अच्छे चतुरतार बुद्धि प्रयोग करने कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा टी संज्ञा का पुणी थे आप परिभाषा पारिभाषिक शब्दावली किसी क्वेश्चन आसी टी संज्ञा कौन अटे कहवा शब्द कौन सी शब्दर सर्वशेष वर्णर सर्वशेष स्वर वर्ण आरंभ करके परर अंश को टी संज्ञा बोली कहुए यहाँ आपंकर कौन करें ये कौन हो पारे आपर ना परिभाषा शब्दटी देपर आपको कि संज्ञा बोली पचारि पारे कौन सी शब्दर सर्वशेष स्वर वर्ण आरंभ करिकी ता पर अंश को टी संज्ञा बोली कहला ठीक है जेपरिक आपंकर कौन ना राजन शब्दर कौन अच्छी ना अन बोली शब्दटा रहा बुझीपारे समस्ते निज निज नाँ आम टी संज्ञा कहीपर अचंत्यादि टी बहुत बढ़िया पचारे सूत्र एक्चुअली भूवादय किम नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपंकर भूवादय भू आदय धातव भू आदय धातव नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपंकर स्पर्श वर्णानाम संख्या कति स्पर्श वर्णर संख्या के स्पर्श वर्ण संख्या हूँ 25 आप जो कुचुट तुप वर्ग अच्छी से कुचुट तुप वर्गर ये वर्ण गुड़ी कहते हैं कौन ना स्पर्श वर्ण ठीक अच्छे नित्य स्त्रीलिंग शब्दानाम का संज्ञा भवती नित्य स्त्रीलिंग शब्द गुड़िकर क्यों संज्ञा होता है सी आपंकर कौन हो नदी संज्ञा आपंकर जो गोटे परीक्षा होता कौन परीक्षा तो कहते एसएसडी परीक्षा एससी एसटी डेवलपमेंट स्कूल परीक्षा क्वेश्चन था ठीक अच्छे नित्य स्त्रीलिंग शब्द गुड़िक आपंकर कौन अटंती ना नदी संज्ञा अटंती युष्याक्षु नदी जो शब्द गुड़िक स्त्रीलिंग अच्छा से कहूँ नदी जेपरिक श्री बधु एमाने ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा त तबत प्रत्यय कि मुच्यते त एवं तबत प्रत्यय को कौन बोली कहगला त तबत प्रत्यय को आपंकर कहगला निष्ठा प्रत्यय ठीक अच्छे निष्ठा त तबत हूँ आपंकर निष्ठा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शत्रु सानस प्रत्यय कि मुच्यते शत्रु सानस ये दुटा प्रत्यय को आपण कौन बोली कहते कहवा ये शत्रु सानस प्रत्यय को आपंकर कौन बोली कह शत्रु सानस को आप कौन प्रत्यय कौन बोली कह सत प्रत्यय शत्रु सानस हूँ सत प्रत्यय ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्प अक्षरम कि मुच्यते अल्प अक्षरम सूत्रम अल्प अक्षर को आप कौन बोली कहगला सूत्रम बोली कहगला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा संभाषण अभ्यास नाम किम ये आपंकर पुणी थे आपंकर कौन कहीपर ना आपंकर टीचिंग मेथड आसीगला आपंकर कौशल गुड़िक संपर्क में संभाषण अभ्यास नाम किम तो आंसर को मेंशन करवा तो जिते कौन कर ना संभाषण अभ्यास अर्थ कौन कौन ना कौन से विषय को शुद्ध उच्चारण सहित कहीं ये आप तीन टा आम भाषण कौशल गोटे कौन आप फास्ट उच्चारण देन आप संभाषण देन आप कौन रोचे ना भाषण अभ्यास तो से कौन कौन आपको तीन भाग में भाग कराई ना प्रारंभिक समय आपंकर उच्चारण संभाषण तापर भाषण दक्षता तो संभाषण अभ्यास नाम कौन संभाषण अभ्यास अर्थ कौन कौन भाषण कौशल शुद्ध उच्चारण विषय ज्ञान बहुत आवश्यकता थाए ता सहित पूर्ण वाक्य सठिक शब्दर प्रयोग करने निहत रूप दरकार पड़े ताही हूँ आपंकर संभाषण अभ्यास संभाषण अभ्यास कति भागे विभक्त संभाषण अभ्यास केते भागे विभक्त ना सी हूँ आप दी भाग गोटे हूँ व्याकरण आधारित संरचना सांदर्भिक संरचना मन रखु एक दी भाग भाग कराई गोटे हूँ आपंकर कौन ना व्याकरण आधारित संरचना पुणी थे द्वितीय रही आपर कौन ना सांदर्भिक संरचना तो देखा व्याकरण आधारित संरचना कौन रही फास्ट देखीदे परवर्ती विषय को जा गोटे मिनट व्याकरण आधारित संरचना नाम कि व्याकरण आधारित संरचना अर्थ कौन संरचना अर्थ हूँ रचना करवा ठीक अच्छे शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृदंत आदि नियम को आधार कर शुद्ध वाक्य प्रारंभिक समय प्रयोग कर जहाद्वारा कौन हो आपंकर कथनटी आपंकर सुख साव्य हो ठीक अच्छे से गोटे आपंकर कौन रही है पतंजलि महाभाष्य रही तो कौन एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यज्ञात स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखिए व्याकरण आधारित संरचना अर्थ होची जो भाषण कहते से समय यदि आप सठिक शब्द गुड़िक प्रयोग कर कहते सठिक व्याकरण संभुक्त व्याकरण जुक्तियुक्त व्याकरण द्वारा सठिक मान्यता प्राप्त शब्दर जब प्रयोग करुँच संभाषण अधिक लाभदायक होची कथन प्रणाली कथम सुखश्राव्य भवती कथन प्रणाली केतेबेले सुखश्राव्य होता है ना जितेबाला आम कौन करूँ ना शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृदंत आदि नियम को आधार करी शुद्ध वाक्य प्रयोग करें सी कौन हो कथनटी सुखश्राव्य हो क्वेश्चन आप रही पारे शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृदंत आदि नियम को आधार करी शुद्ध वाक्य प्रयोग करने द्वारा कौन हो शुद्ध वाक्य प्रयोग करने द्वारा आमर कथन प्रणाली सुखश्राव्य हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांदर्भिक संरचना नाम कि सांदर्भिक संरचना अर्थ कौन आंसर कहबा ये मेंशन करबा
तो ये कौन देछि ना मन रखिदेबा कौनसी प्रकरणर विषय को आधार करके प्रसंग क्रमे वाक्य रे प्रयोग करबा को पड़े। विषय वस्तु को बोधगाम्य हेबा पर शब्द योजना आलंकारिक प्रयोग सुक्ति वाक्य सहित शुद्ध उच्चारण को गुरुत्व दिया जायते। ताहा ही होछि आपनकर कोन ना सांदर्भिक संरचना। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्याकरण आधारित संरचना नाम केमिति हेइ जायछि। शब्द रूप धातु रूप आदि नाम सुप्रयोग कथम भवति कुत्र भवति एक्चुअली कथम भवति नुई कुत्र भवति एगुडिकर प्रयोग केउंठी होछि ना एगुडिकर प्रयोग होछि आपनकर व्याकरण आधारित संरचना रे। मन रखंतु एठी राइट आंसर आपनकर कोन होछि ना व्याकरण आधारित संरचना रे आपन मानकर शब्द रूप धातु रूप गुडिकर सठिक रूप रे आपनकर प्रयोग करा जायथाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट मिनिट एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर के लोके च कामतुक भवति कहार उक्ति अटे ये आपनकर पतंजलिकर ही आपनकर कोन करा जायछि ना महाभाष्य रे को ग्रहण करा जायछि। शिक्षा बल्ली प्रकरण अच्छा एटा आंसरिंग दे दीची आपन को कुछ करिया दरकार नहीं। शिक्षा बल्ली प्रकरण शिक्षाम व्याख्यायिष्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम सामः संतानः कुतः गृहीत वाक्यटी एक्चुअली कोठु आछि नि अछि आपन वाक्यटी आछि तैतरी उपनिषद रु मन रखो ए लाइन टा कोठु आछि ना इटी आपन लाइन टे आछि तैतरी उपनिषद रु ग्रहण करा जायछि। सांदर्भिक संरचना कोन हे जायछि हां देखिबा नेक्स्ट हाँ श्लोकटी को मन रखी व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान् द्रष्टाभ्यम न च पीडयेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद्वर्णानां प्रयोजयेत। एटी पाणिनीय शिक्षार ए लाइन टी आसी आपनकर कोन ना व्याघ्री जेपरि निज पुत्र को धरिक जायथाय पाटी भितर किंतु तार किछ कष्ट देई नथाय जे कोनोसी पशु को धरिबे तांको छोट जन्म पिलाटा को जदी गोटे जगह आउट जगह नबार अछि तने पाटी भितर धरिक छी किंतु पिलाटी बिल्कुल कष्ट नै गोटे टोपाडी रक्त बाहरिबनी। आमको सेमति मते कोन करिवार अछि जेतेबेले शब्द को व्यवहार करछन से समय रे ना कोन करिबा ना यही सब जिन ध्यान दे कर जपरी तार किसी भूल हेनी से श्लोक ये प्रकृति से कल्याणी दंतोष्टु यस्य शोभना प्रग्लब विनीत सवर्णम वक्तुम अर्हति माने ये कौन थे ये श्लोकटी आपको कौन बोली कौचे ना आवश्यकता नुहे तथा सामान्य रूप से आपंकर वर्ण किपरि होगा दरकार भाषण दक्षता संपर्क ये आरंभ करुच्ची। देखा मानसिक भारसाम्य सुरक्षा कथम भवति मानसिक भारसाम्य सुरक्षा आपंकर किपरि होउची कहबा एठी राइट आंसर आपंकर कोन रहउची मानसिक भारसाम्य रक्षा किपरि आपंकर होउची। गोटे उत्तम वक्ता पे कौन करिवार अछि आपनको ना प्रारंभिक समय रे टिके सामान्य जान दबा ना भल वक्ता किपरि जन हे परिबो ना श्लोकटीर अर्थटी को कहली नियो बोधे एठी प्रकृति से कल्याण व्यवस्था को माने सांप्रतिक व्यवस्था को देखि कहबार अछि दांत ओष्ठर सौंदर्य को रखियार अछि वाक्चातुर्य मध्य रखिबार अछि एवं विनय भाव रखिबार अछि एई चारटा जदि जन पाख रहिला ताल से उत्तम वक्ता हे पर श्लोकटीर अर्थ ताही को जायछि। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मानसिक भारसाम्य सुरक्षा कथम भवति मानसिक भारसाम्य सुरक्षा किपरि हे परिबो आपण गोटे जगह भाषण दा पे जाउछंती तो किपरि कहबे एई सब जिंस को ध्यान देबे जदि हे परिबो मानसिक भारसाम्य सुरक्षा कहबा तो मानसिक भारसाम्य सुरक्षा विषय कह निज भाषार शब्दावली उत्पन्न होगा तात्विक ज्ञान नूतन पद सृष्टि कर मानसिक यथार्थता पद प्रयोग दक्षता ये गोटे मुख्य कारण अटे मानसिक भारसाम्य गोटे पिला को मेंटाली आप किपर प्रिपेयर करेंगे तो ताकू आप कौन करेंगे किसी भल विषय कहे पत्र पत्रिका पुराण इत्यादि विषय को पढ़ाई कहे ताहले तार कौन हो पार ना बाकपटुता बढ़े और श्रेणी प्रकोष्ठ कौन कर ना भाषण के इच्छुक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनितत्व संबंधी ज्ञानम कथम वर्धते ध्वनितत्व संबंधी ज्ञान तार किपरि बढ़िबो ध्वनितत्व संबंधी ज्ञान तार केतेबेले बढ़िबो ना जदि आम कौन करबा ना कौन कहीपर ना मुख्यतः आप अल्प प्राण महाप्राण भेद दर्शेबा तीन टा स्वर जदि भेद दर्शेबा तार ध्वनितत्व संबंधी ज्ञान बढ़ पुनः प्रयासन कह लाभ पुणी थोड़ी बारंबार भय कर द्वारा कौन लाभ हम ना पुनः 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 प्रयास है पुणी थोड़ा बारंबार प्रयास करने तो कहवा द्वारा ता मन में जो भय और लज्जा रही है धीरे धीरे पलैब और कौन हम ना सी किसी नुआ करने प्रोत्साहन पाइब। पठन कौशलम कतम कौशल पठन कौशल आप नंबर कौशल ना पठन कौशल आप 3 नंबर कौशल मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रही छात्रा श्रवण अपेक्षा केन अधिक ज्ञान लभ्यन्ते पिला माने श्रवण अपेक्षा केउठ अधिक ज्ञान पाउछंती सी होची आपनकर पठन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पठन काले कह कार्य त्रयम करती आप पाठ पढ़िया समय 3टा काम किए कर आपंकर हूँ चक्षु आखि आपंकर कौन कर गोटे 3टा काम कर दौर माने सी शुणुची मन रखुची शुणुची देखुची आगू पछु होची। गति शब्द से आंग्ल रूपम कि गति शब्द आपंकर आंग्ल शब्दटी कौन अटे गति शब्द आपंकर आंग्ल आंग्ल माने इंग्रेजी रे कौन कहु ना सी होची मूवमेंट मन रखु सी होची कौन मूवमेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्मृति शब्द से आंग्ल रूपम किम स्मृति शब्द आंग्ल रूपटी इंग्लिश शब्द कौन अटे सी आप फिक्शन FAXATION स्मृति मन रखी दिंतु मे भी क्वेश्चन रही पारे किसी माने अजब विषय नुहे FAXTION सी हूँ आपंकर कौन ना स्मृति शब्दर आंग्ल रूप पश्चात गति शब्द से आंग्ल रूपम किम पश्चात गति शब्दटीर आपंकर इंग्रेजी शब्दटी कौन अटे पश्चात गतिर आपंकर इंग्रेजी शब्दटी हूँ रिग्रेसिव मन रखु रिग्रेसिव आपंकर हूँ कौन ना पश्चात गति शब्द आपंकर इंग्रेजी रूपटी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पठनम कतिविध पठन को आपन केते भाग भाग कराई पठन कौशल विकास आपंकर केते भाग भाग कराई ना सी आपंकर तीन भाग भाग कराला मन रखिता को तीन भाग भाग कराई तो कौन कौन सी ना गोटे हूँ मुखरता आउ गोटे भाव ग्रहणीयता आउ गोटे हूँ पठन गति यपरी भाव में आप पठन कौशल को तीन भाग भाग कराई ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुखरता पठनम नाम किम तद कथिविदम मुखरता पठन को आपन केते भाग भाग कराई मुखरता अर्थ हूँ मुखरे जहाँ रत होकर रही आपको मुखरता बोली कहला ताको केते भाग भाग करा सी आपन दी भाग भाग करा गोटे आपंकर सस्वर पठन आउ गोटे आपंकर मौन पठन मन रखी मुखरे जहाँ बारंबार रत होता मुखरता पठन बोली कहो आ मुखरता पठन को आपंकर दी भाग भाग कराई गोटे हूँ आपंकर सस्वर पठन और आउ गोटे आपंकर मौन पठन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गोटे मिनट तो गोटे घंटा पाखापाखि होगा सब 100 क्वेश्चन सरी आहरी 100 क्वेश्चन अच्छी भाव ग्रहणीयता नाम किम एवं तद किम तद कतिविध भाव ग्रहणीयता अर्थ होची जेकोसी विषय को पढ़िले जदि ताकू आमे जो तार भावटी ग्रहण करुचंती ताकू भाव ग्रहणीयता कहगला तो ताहा केते भागरे भाग कराइछि ताकू मध्ये आपनकर कोन कराइछि दुई भागरे भाग कराला गोटे होची विषय विस्तृत पठन आउ गोटे आपनकर गहन पठन ठीक अछि भाव ग्रहणीयता दुई भागरे भाग होइछि गोटे होची गहन पठन आउ गोटे होची विस्तृत पठन पठन गति नाम किम तद कतिविधम पठन गति केते भागरे भाग कराइछि आ ताहा कोन कोन पठन गति होची आपनकर तीन भागरे भाग कराइछि गोटे होची आपनकर मौन पठन आउ सॉरी मंद पठन ना कि मौन पठन मंद पठन सामान्य पठन एवं आपनकर पठन द्रुत पठन ठीक अछि पठन गति अर्थ होची आपन पढिबार स्पीड टाको तीन भाग भाग कराइछि गोटे होची मंद पठन सामान्य पठन आउ होची द्रुत पठन लिखि दोछि एठी आंसर गुडी मेंशन करने ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन सस्वर पठनम नाम किम तद गतिविधम नेक्स्ट पुणी थे आपन आसी गला सस्वर पठन आपनकर केते भागरे करा जाइछि बहुत बढ़िया बहुत जन आंसर कहउछंती जो आंसर कहउछंती बहुत बहुत धन्यवाद सेमानंको आपनकर बहुत मूल्यवान समय को दउछंती से समय को मध्ये आपन माने आपनकर बहीटा पढियार जति तेबे आउरी बहुत बढ़िया रहइबो सस्वर पठनम नाम किम सस्वर पठन अर्थ कोन सस्वर पठनर फास्ट इंग्रेजी टर्म को जानतु सस्वर पठनर इंग्रेजी शब्दटी होची साउंड रीडिंग जोंठी आपनको शब्द आसिला ताको आमे सस्वर पठन बोली कहबा जा स्वर रे बोला जे ताहा होची आपनको सस्वर पठन संस्कृत रे आपनकर जते बेले पढुचन से समय श्लोक गुडी को पढिया समय आपन माने छंद विषय ध्यान देबे गुरु लघु विषय को मध्ये आपन माने ध्यान देबे आ जो देखिबा आमे माने कोन ना सस्वर पठन को आपन माने केते भाग रे भाग करा गला ना सस्वर पठन को आपनकर चारि भाग रे भाग कराइछि मन रखंतु कौन कौन चारि प्रकार कहूँ ना सी कहूँ जे श्लोक को पढ़िया समय आम सस्वर पठन भाग कर कौन कौन लययुक्त पठन मौखिक पठन आक्षरिक पठन गृह पठन यपरी भाव में कौन कर चारि भाग भाग कर ठीक अच्छे लययुक्त पठन मौखिक पठन आक्षरिक पठन गृह पठन ठीक अच्छे गोटे मिनट ये हूँ चारि भाग भाग कराला आ चार्टा जा ना कौन कौन कहूँ ये फास्ट आपण मानकर हूँ ना लययुक्त पठन इंग्रेजी नाटी मन रखु परीक्षा पड़ियो सी हूँ रिदम राइटिंग सॉरी रिदम रीडिंग मौखिक पठन तार हूँ ओराल रीडिंग आक्षरिक पठन सी हूँ वर्ड बाय वर्ड रीडिंग एवं अपन गृह पठन सी हूँ होम रीडिंग ए संपर्क आप क्वेश्चन परीक्षा थिला लास्ट टाइम OSS रे नेक्स्ट आपन माने मुखरता आपनकर दुई भाग भाग कराइथिला ना गोटे होची आपनकर कोन ना सस्वर पठन आउट आपनकर होची आई थिंक किसी नेटवर्क इश्यू आसी गला गोटे होची आपनकर कोन ना सस्वर पठन आउट होची आपनकर मौन पठन तो मौन पठन रे आपनकर कोन होची ना बिना शब्देन यद पठनम नेक्स्ट देखि देबा मौन पठनम नाम किम तत् कतिविध मौन पठन कोन अर्थ तत् केते भाग भाग कराइछि तो एठी कोन कहूची मौन पठन आपनकर अर्थ कोन मौन पठन अर्थ होची जे कोनोसी विषय को जदि आमे कोन करचंती ना शब्दम बिना यद पठ्य तद मौन पठनम भवते शब्द बिना जदि हम पढुचन ताले से मौन पठन फायदा कोन ना स्मरण शक्ति बढ़ुची मुखस्थ करिवार मध्ये क्षमता बढ़ुची
ठीक अच्छे आप जिनसा कौट देखिपारे ना ट्रेन जावा समय जनगहली स्थान ये सब जिन आप देखिपारे अधिक समय हालिया नहींकि आपने कौन कर विषय को आपने पढ़ी पार्टी ठीक अच्छे तो या केते भाग में मौन पठन को भाग कर ना मौन पठन को भाग कर दी भाग में कौन कौन से दुईटा जाए ना गोटे हूँ आप जंत्रवत पठन आउट हूँ आप अवघोष पठन ठीक अच्छे गोटे हूँ आप जंत्रवत पठन आउट हूँ आप अवघोष पठन ये दी भाग में भाग कराई तार मध्य इंग्रेजी ना गुड़ी मन रखु मौन पठन आप इंग्रेजी ना कौन अटे ना सी हूँ आप साइलेंट रिडिंग मन रखी था मौन पठन आपंकर इंग्रेजी नाटी हूँ साइलेंट रिडिंग से भाई आपंकर कौन अच्छी जंत्रवत पठन अर्थ कौन जंत्रवत पठन अर्थ हूँ मेकानिकल रिडिंग से भाई अवघोष पठन अर्थ हूँ सब भोकाल रिडिंग एपरी भाव में कौन कर मौन पठन को विभाजन कर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आगू देखा क्वेश्चन गुड़िक रही मतलब से संबंधी ना यंत्रवत पठनम नाम कि यंत्रवत पठन अर्थ अर्थ कौन यंत्रवत पठन अर्थ हूँ आपंकर मेकानिकल रिडिंग यंत्रवत पठनम नाम कौन ना जंत्र जो भाई शीघ्र शीघ्र पढ़ुची से भाई पढ़ा को आपंकर कौन कह जंत्रवत पठन बोली कहला यार इंग्रेजी रूपटी कौन अच्छी ना इंग्रेजी रूपटी यार हूँ ना इंग्रेजी रूपटी आपंकर क्वेश्चन ये क्वेश्चन गोटे थी मोर मन पड़े बर्तमान समय ना शीघ्राति शीघ्र पठनम नाम किम ना शीघ्राति शीघ्र पठनम नाम जंत्रवत पठनम ठीक अच्छे तो यार इंग्रेज टर्म कौन अच्छी ना मेकानिकल रिडिंग देन अच्छे आप अवघोष पठनम नाम किम गोटे मिनट आउ थे हाँ अवघोष पठनम नाम किम अवघोष पठन अर्थ कौन ना सही आपंकर कौन करिबा ना कौन से विषय को गुणु गुणु ही पढ़ा सामान्य कंठरे पढ़ा को आपंकर अवघोष पठन बोली कह मन रखु क्वेश्चन टी आसीपे आपंक परीक्षा मौन अवस्था कौन करिबा ना गुणु गुणु ही पूरा मौन रही गुणु गुणु ही सामान्य कंठरे पढ़ा को आपंकर कौन बोली कहगला अवघोष पठन बोली कहगला ठीक अच्छे तापर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भावग्रहणीयता नाम किम तो बहुत बढ़िया बहुत जन आंसर एक्चुअली आसूँ कंटिन्यू रोचते बहुत धन्यवाद आहुरी पाखापाखि 100 ऊपर अधिक क्वेश्चन जी क्वेश्चन से 2 गुण क्वेश्चन रही है भावग्रहणीयता पठनम नाम कि मीनिंगफुल रिडिंग भावग्रहणीयता अर्थ हूँ मीनिंगफुल रिडिंग भावग्रहणीयता पठन को मध्य कौन कर भावग्रहणीयता नाम किम तद कतिविधम भावग्रहणीयता को केते भाग में भाग कर दी भाग में भाग कर गोटे हूँ गहन पठन आउट हूँ विस्तृत पठन तो भावग्रहणीयता अर्थ कौन ना कौन सी विषय को हृदयंगम करने को भावग्रहणीयता बोली कहगला सिंपल रूप से मन रखते अधिक मन रखा दरकार नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गहन पठनम नाम किम गहन पठन अर्थ कौन से गोटे श्लोक रही पाठ कंठस्थ ना कंठस्थ पाठ हेतु पुस्तक बाचयते श्लोक मन रखु परीक्षा पढ़ी पारे श्लोकटी मन रखु कंठस्थ भावे तु पुस्तक उपरि बाचयते ये क्यों पठन सहित संपृक्त बोली क्वेश्चन आपन रही पारे ठीक अच्छे कंठस्थ पाठ हेतु पुस्तक उपरि बाचयते क्यों पठन सहित संपर्क ना से होची आपनकर भावग्रहणीयता सहित गहन पठन अर्थ कौन कही इंटेंसिव रिडिंग कौन कौन ना अति कष्ट बहु परिश्रम चिंतन मध्य पठन कर गहन पठन बोली कहुए या कौन कर दी भाग में भाग कर गहन पठन को सी हूँ विकासार्थ पठन आउट हूँ संदर्भगत पठन विकासार्थ पठन इंग्रेज टर्म हूँ डेभलपमेंटाल रिडिंग संदर्भ पठन इंग्रेज टर्म हूँ रेफरेंस रिडिंग ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विस्तृत पठन नाम कि विस्तृत पठन अर्थ कौन तो भावग्रहणीयतार ही गोटे अंश थिला ना तो विस्तृत पठन अर्थ कौन कौच हाँ बहुत बढ़िया तो कौन कौच विस्तृत पठन अर्थ कौन ना डिस्क्रिप्टिव रीडिंग कौन से विषय वस्तुर समास संधि कारक व्युत्पत्ति विषय को आलोचना करी पठित विषय को सविशेष विवरण प्राप्त होची विस्तृत पठन विस्तृत पठन अर्थ बुझीपारे समस्ते विस्तृत पठन अर्थ हूँ कौन जेकोसी विषय गोटे विषय को धरले आप धरत अभिज्ञान शाकुंतल बही के धरले पूरा पूरी तार समास संधि कारक प्रत्यय सब विषय को पढ़ले जदि से आपको विस्तृत पठन ठीक अच्छे ताको मध्य दुई भाग में भाग कराई गोटे आपंकर कौन अच्छी ना गोटे हूँ आधारित पठन आउट हूँ विमर्शात्मक पठन आधारित पठन अर्थ हूँ बेसल रिडिंग विमर्शात्मक पठन अर्थ हूँ रिफ्लेक्टिव रिडिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधारित पठनम नाम किम आधारित पठन अर्थ कौन आधारित पठन अर्थ मु कौन कही मैंने इंग्लिश टर्म कही देछि प्रासंगिकता को दृष्टि रखी केवल विषयगत को आलोचना करागले ताको आधारित पठन बोली कहगला मन रखिबे समस्ते कौन से विषय कौन कहूची ना प्रासंगिकता को दृष्टि न रखी केवल विषयगत को जदि आलोचना करा जाए ताले से आपन आधारित पठन पठन गति नाम किम पठन गति को कौन बोली कहबा चक्षुस्फलन विधवा मूल्यांकन मानसिक
शारीरिक अवस्थिति उपरे किए निर्भर करुछि ना पठन गति निर्भर माने निर्भर करुछि पठनर गति होछि तीन प्रकार गोटे होछि मंद सामान्य द्रुत ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा उच्चै पाठ निषिद्धस्य त्वराच परिवर्जयत शुद्धेन अचलित अचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः एठी आपनकर देछि गोटे श्लोकटा देछि मन रखि दरकार केवल कोन कोन ना श्लोकटा को मन रखि दियंतु आपनको केउ पाठ निषिद्ध ए क्वेश्चन आपनको थिला 2023 मसिया आपनकर केउ पाठ निषिद्ध ना उच्चै पाठ निषिद्ध शीघ्र शीघ्र त्वरा अर्थ होछि शीघ्र उच्चरे पढिबनी शीघ्र शीघ्र पढिबनी शुद्ध न अचलित चित्ते न शुद्ध माने मन को शुद्ध रखिकी अचलित अर्थ मन को मध्य चंचल न करिकी सर्वदा पाठ पढ़िबा दरकार क्वेश्चन थिले केउ प्रकार पाठ को पढ़िबा दरकार बोली कि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मंद पठनम नाम कि मंद पठन अर्थ कोन मंद पठनर इंग्रजी टर्म देखिबे ताले से होछि फिंगर रीडिंग ठीक अछि सी आपनकर कोन देछि मंद पठनर अर्थ होछि फिंगर रीडिंग तो सेठी कोन देछि फिंगर रीडिंग अर्थ काहू को आजिबो ना सी होछि पठन समय रे आंगुडी बही रे देकी गीत बोलिला बेले मुंड को हलाई हलाई जदी पढिया ताले ताको आला मंद पठन धीरे धीरे पढियाटा कोडा जाउछि कि आपण छोट पिला देखि छोट पिला गुडा जदी बही पढिया ताले किपरि पढिया तरन गोटे लाइन लिखाइछि कटक सहर बड़ सुंदर सी बही ऊपर आंगुडटा देथिबो क ट क कटक तापरे सहर 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 तापरे सेमति जदी बड़ सुंदर सुंदर शब्दटी पढले सु सर हर्ष सु सुंदर सुंदर पूरा लाइन तापरे पढे कटक सहर बड़ सुंदर तो ये हूँ आपन मंद पठन कहीं आंगुड़ी दे दे सी धीरे धीरे पड़े किए अधम पाठक बोली क्या कह तो कौन कह अधम पाठक संपर्क में ना छन्नकार रहा भयभीत हवा तापर कौन कह अति बड़ पाटे पढ़ा अस्पष्ट भाव में पढ़ा नाकरे कथा कहवा कर्कश स्वर में कहवा मुंड हल्लाई पढ़ा वर्ण प्रयत्न को न मानि पढ़ा हर्ष दीर्घादि स्वर को न मानिबा रसशून्य भाव में वर्णना करवा एवं विरमा आदि चिन्ह को न मानिक पढ़ा ये हूँ आपंकर कौन ना अधम पाठकर लक्षण गुड़िक अटे ये आप क्वेश्चन थिला आई थिंक मन थी समस्त ये क्वेश्चन आपण मानकर थिला गीता शीघ्री शिरस्कंपी यथा लिखित पाठक अनर्थ अज्ञ अल्प कंठश्च षडेते पाठकाधम आपन लास्ट ईयर क्वेश्चन थिला एटा के पाठ अधम पाठक के ना गीता शीघ्री शिरकंपी यथा लिखित पाठक अनर्थ अज्ञ अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधम केतरा अधम पाठकर गुण केतरा ना 6टा बोली कहै मन रखंतु ठीक अछि षडेते पाठकाधम 6टा होछि अधम पाठक सामान्य पठनम नाम किम नेक्स्ट आउट डायरेक्ट क्वेश्चन आसी करके के बोले क्वेश्चन आसीला आ हां बहुत बढ़िया से वाक्यटा पढो छै जाग्ञ बलिक स्मृति रही बहुत बढ़िया कहबा शीघ्र शीघ्र कहबा टिके बहुत गुडे क्वेश्चन अछि सामान्य पठनर इंग्लिश टर्म होछि आपन रिमेडियल रीडिंग कौन सी विषय वस्तु कौन सी विषय को पठन करिया समय अस्पष्ट हेले पुनः पुनः माने पुणी थरे पढ़िबा को आपनकर कोन बोली कुआ गला ना सामान्य पठन बोली कुआ गला ठीक अछि कौन सी विषय को आप पढ़ुଛନ୍ତି पढ़िया समय यदि किसी विषयटा अस्पष्ट रहिला पुणी थरे पढ़िया प्रणाली को आपन सामान्य पठन बोली कुआ गला आ ये आपनकर कोन समय सापेक्ष पठनम किम इटा मध्ये आपन रही पारे किम पठनम समय सापेक्ष पठनम सी होछि आपन सामान्य पठन कहीं जे विषय को पुणी थरे पढ़िया ना एदा टाइम लॉस होइछि तो सेति पे होछि सामान्य पठन होछि आपन समय सापेक्ष ठीक अछि द्रुत पठनम नाम किम के गुणः सन्ति द्रुत पठन कौन एवं तार गुण गुड़ी कौन कौन अटे ना बहुत जन द्रुत पठन एवं यंत्रवत पठन भीतर कंफ्यूज हो जाते प्रमाद शून्य स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पठन को द्रुत पठन कहुए पाठक ए 6 प्रकार गुण रहा उचित आपंकर कौन जदि द्रुत शीघ्र शीघ्र पढ़ुंट आपंकर 6टा गुण थी दरकार क्या प्रथम कहगला ना स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जदि आप कौन करुँच प्रमाद शून्य स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जदि आप किसी विषय पढ़ुं सी है आप द्रुत पठन कौन कौन से गुड़िक ना पठन में सरसता रहा दरकार अक्षर चिन्हवा माने गुण थी दरकार पद गुड़िकर यथाउचित भाव पढ़ा दरकार स्वर सह पढ़ा दरकार धैर्य धारण करके पढ़ा दरकार ताललय सहित योग्यता धरिकी पढ़ा दरकार ये हूँ आपंकर कौन द्रुत पठन 6टा गुण आउ थे कौन पठन में सरसता थीबार अच्छी अक्षर चिन्हबार अच्छी सठिक रूप से पद गुड़ी को यथोचित रूप से उच्चारण करार अच्छी स्वर सह पढ़ार अच्छी धैर्य धारण करार अच्छी ताललय योग्यता सहित पढ़ार अच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यंत्रवत पठनम नाम किम यंत्रवत पढ़ार अर्थ कौन कहबा ये आप रईट आंसर कौन रोचे यंत्रवत पठनम नाम किम यंत्र भली पढ़ा को कौन बोली कह क्वेश्चन पूर्व था पुणी थे आपको आसीगला ये यंत्रवत पठनम अर्थ होची मौन अवस्था शीघ्र शीघ्र पढ़ा को यंत्रवत पठन बोली कहगला मौन अवस्था बहुत स्पीड रे पढ़ा को आपको यंत्रवत पठन बोली कहगला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा शस्त्र पठने कस्य उपयोगात परिश्रम अधिक होती
ଶ୍ୱର ପଠନ ପାଟି କରିକି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ କାହାର ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଯାଉଛି ନା ପାଟି କରି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ମୁଖର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। କଦା ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭବତି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟି କମି ଯାଉଛି ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ମୌନ ପଠନରେ। କସ୍ୟ ପଠନ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାତ୍ରନାମ କୃତ ଅତ୍ୟନ୍ତମ ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ପଠନଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌନ ପଠନ। କିଦୃଶେନ ପଠନେନ ବହୁ କାଳମ ବିଷୟ ସ୍ମର୍ତ୍ତୁମ ଶକ୍ୟତେ କେଉଁଭଳି ପଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ମୌନ ପଠନ। ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନ। ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ରହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବା। ବାଚନ କ୍ରିୟା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପମ କିମ୍ ବାଚନ କ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ଲେଖନ। ଭାଷା ଏହା ସ୍ଥିର ରୂପ ପ୍ରଦାନ ନାମ କିମ୍ ଭାଷାକୁ ସ୍ଥିର ରୂପ ଦେବାଟା କ'ଣ ଅଟେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନ। ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରୂପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିକି ଯିବା। ବହୁବାର ପଠନ ଅପେକ୍ଷା କେନ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ଭବତି ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଷୟଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ସ୍ମରଣ ରହିଯିବ ନା ସେ ହେଉଛି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା। ସତ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛି ନିଜେ ଟାଇପିଂ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ କଥା ବହୁବାର ପଠନ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟଟି ମନେ ରହିଯାଇଥାଉଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆସନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ସିଏ ହେଉଛି 42 ଆଉ କିଛିଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ପାରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏସ୍ଏସ୍ବି କୁ। ତ ପାଣିନିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି 42 ଜପାମାଳିରେ 51 ଇଂରେଜୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି 26 ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ସି ତୁର୍କ ଏସବୁ ପଚାରିବନି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜପାମାଳାରେ କେତେ ଅଛି ବୋଲି ଜପାମାଳାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 51 ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ଅଛି ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ମେ ବି। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିପି ସମ୍ପର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଇ ଲିପି ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିପି କତିଥା ଲିପି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ନା ଲିପି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା କେତେ ପ୍ରକାର ନା 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ 5ଟା ନା ସେ 5ଟା ସିଏ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲିକି ନା ତାପରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରାଲିପି ଶିଳ୍ପଲିପି ଲିପି ଲେଖନ ସମ୍ଭବା ଗୁଣ୍ଡିକା ଗୁଣସମ୍ଭୂତା ଲିପୟ ପଞ୍ଚଧା ସ୍ମୃତା ଏତାଭି ଲିପିଭି ବ୍ୟାପ୍ତା ଧରିତ୍ରୀ ଶୁଭଧାହରା। କ'ଣ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ନା ସିମ୍ପଲ ରୂପରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରାଲିପି ଶିଳ୍ପଲିପି ସାର୍ବଜନୀନ ଲିପି କଲମ ଲିପି ମୁରୁଜ ଲିପି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିପି ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମୁଦ୍ରାଲିପି ଶିଳ୍ପଲିପି ସାର୍ବଜନୀନ ଲିପି କଲମ ଲିପି ବା କଲମ ଲେଖା ଏବଂ ମୁରୁଜ ଲିପି ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିପି ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି ଲେଖନ କୌଶଳ କୁତ୍ର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲେଖନ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଲେଖନ କୌଶଳ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖନ କୌଶଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଛି ନା ଛାତ୍ର ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖନ କୌଶଳରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧି ନାମ କିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ। ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ପଚରାଯାଇଛି ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧି ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧି ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା କୌଶଳ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧି ସମ୍ପର୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ ଫଟାଫଟ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ସାରିଦେବା। ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧି କୁହାଯାଇଛି ଲେଖନ କୌଶଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଯାକ କାମ ଚାଲିଲା କାହାର ନା ଆଖିର କାନର ଏବଂ ହାତର ଲେଖନ କୌଶଳ ସମୟରେ ଆପଣ ହାତ ଆଖି କାନ 3ଟା ଯାକ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମାଣ୍ଟେସରୀ ବିଧିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁଲେଖ ବିଧି କତି ଭାଗେ ସୁବ୍ୟକ୍ତ ସୁଲେଖ ପାଇଁ ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ବା ଲେଖନ କୌଶଳ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ 4ଟା ନା ଅନୁଲେଖ ବିଧି ପ୍ରତିଲେଖ ବିଧି ଶ୍ରୁତଲେଖ ବିଧି ରଚନା ଲେଖ ବିଧି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଲେଖ ପାଇଁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଅନୁଲେଖ ପ୍ରତିଲେଖ ଶ୍ରୁତଲେଖ ରଚନା ଲେଖ। ଅନୁଲେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ରତିଲେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ ଶ୍ରୁତଲେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିକ୍ଟେସନ ରଚନା ଲେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ। ଠିକ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଠିକ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଅନୁଲେଖ ନାମ କିମ୍ ଅନୁଲେଖ ଅର୍ଥ କ'ଣ କୌଣସି ଅକ୍ଷରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଲେଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଲେଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୟାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାରିଭାଷିକ ମାନେ ପରିଭାଷାଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଦେବ ଅନୁଲେଖ ଅର୍ଥ କ'ଣ କୌଣସି ଅକ୍ଷରକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେଇଭଳି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଲେଖ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ବୁକ୍ ରହିଛି ୱାର୍ଡ ବୁକ୍ ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥିବେ ଭାବୁଛି ମୋତେ ପିଲାବେଳେ ୱାର୍ଡ ବୁକ୍ ମିଳୁଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି 1-2ଟା ପେଜ ଲେଖି ଦେଉଥିଲି ବାକି ସେଇ ବର୍ଷଟା ସେମିତି ପଳାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳେ ଭଲ ୱାର୍ଡ ବୁକ୍ ଲେଖୁଥିଲେ ଅନୁଲେଖ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୋ ଅକ୍ଷର କିପରି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରତିଲେଖର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଡିଂ କ'ଣ ପ୍ରତିଲେଖ କ'ଣ କହିବା ଏଠି ପ୍ରତିଲେଖ ନାମ କି ଯଦି ଟାଇପିଂ କରିବା ସୁବିଧା ହେଉଛି କହିବା ନହେଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ
ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା ମଧ୍ୟ OSS ରେ ଗତରେ ପଚାରିଥିଲା କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବା ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଗଲା ପ୍ରତିଲେଖ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହିକି ଦେଖି ଦେଖି ଉତାରିବାକୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଲେଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଗେ ପିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଲେଖ ଲେଖୁଥିବେ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ କରୋନା ଟାଇମର ବୟସ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେନି ପ୍ରତିଲେଖ ଅର୍ଥ କଣ। ଦି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ମାଗୁ ଆଜି କଣ କଣ ପଢା ହେଲା ଦେ ନୋଟଟା, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖୁ। ଆଜିକାଲି ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ପିଲା ଖାତାରୁ ଜେରକ୍ସ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ, ଆଜି କଣ ପଢା ହେଲା ଫଟୋ ଉଠେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରହିଯାଉଛି। ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ନାମ କିମ୍? ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ଅର୍ଥ କଣ? ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପୁନଃ ଲେଖନକୁ ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଡିକ୍ଟେସନ ପିଲା ଲେଖିଥିବେ, କ୍ଲାସରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା। ପ୍ରତିଲେଖ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଲାଇନଟି, ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣାମ ବୋଧାତ୍ ଅପି ଗରୀୟସୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ହଁ, ପ୍ରତିଲେଖ ସମୟରେ ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କୋଉଠି ତାର ମାନେ ରିମାର୍କ ଲେଖିବେ। ରିମାର୍କ ଲେଖିବା ଅର୍ଥ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନା, ସେ ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ମାର୍ଜିନ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଦେବେ ସେଠି। ରଚନା ଲେଖ ବିଧି ନାମ କିମ୍? ରଚନା ଲେଖ ବିଧି ହେଉଛି ସ୍ୱକୀୟ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ରଚନା ଲେଖ ବିଧି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ରଚନା ଲେଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଦେଖିବା ଏଇଠି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ରଚନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ ରଚନା। ଠିକ ଅଛି, ଓରାଲ ଏସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ ରଚନା। ଠିକ ଅଛି, ଓରାଲ ଏସେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ରଚନା, ଲିଖିତ ରଚନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟିଂ ଏସେ। ରଚନା ଲେଖ କତିବିଧ? ରଚନା ଲେଖ ହେଉଛି ଆପଣ ଦି ପ୍ରକାର, କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରଚନା ଲେଖ ହେଉଛି ଦି ପ୍ରକାର। ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସେ କହ ପାଦ, ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ପାଦ କିଏ? ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ବେଦାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇଠି। ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସେ ପାଦ କିଏ? ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ପାଦ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ। ବେଦାଙ୍ଗ ବେଦ ସେ ହସ୍ତୌ ହସ୍ତୌ, ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ହାତ ଦିଟା କିଏ? ହାତ ଦିଟା ହେଉଛି କଳ୍ପ। କହ ଚକ୍ଷୁ, ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଚକ୍ଷୁ କିଏ? ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମି 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 ଯାଉଛି, ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ନିରୁକ୍ତମ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ? ନିରୁକ୍ତକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କହିବା ଏଠି ନିରୁକ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିରୁକ୍ତକୁ କୁହାହେଲା ସ୍ରୋତ। ସ୍ରୋତମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷା କହ ବେଦସ୍ୟ? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଘ୍ରାଣ। କିମ୍ ବ୍ୟାକରଣ ସ୍ମୃତମ? ବ୍ୟାକରଣ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ନା ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ମୁଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ୟକ୍ ଶବ୍ଦାନମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦାନମ୍ ନିରାକରଣ च कस्य शास्त्र से मुख्यम कार्यम? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ସଠିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ନିରାକରଣ କରିବା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅଟେ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଅଟେ? ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନାକାର କିଏ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାକାର ପାଣିନି। ବ୍ୟାକରଣ କେଶମ ବିଷୟାଣମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭବତି? ବ୍ୟାକରଣରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ? କହିବା ଏଠି ଆନ୍ସର କହିବା। ବ୍ୟାକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଉଛି? ବ୍ୟାକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ, ପଦର ବିପତ୍ତି, ଅର୍ଥ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ତାପରେ ଭାଷାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଭାଷାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ, ପଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ଭାଷାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନଟି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାଣାଦମ ପାଣିନିୟମ ଚ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଉପକାରକମ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଉପକାରକମ କିଏ ନା କାଣାଦମ ପାଣିନିୟମ ଚ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଉପକାରକମ। ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାର ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ କତି ଭାଗେ ସୁବ୍ୟକ୍ତମ? ଆମର ବ୍ୟାକରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା, ସିଏ ହେଉଛି କହିବା ଏଠି ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରିବା। ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ, କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ, ସିଏ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ସେ କି ଅର୍ଥ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣର ଅର୍ଥ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ କଣ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ ଅଛି, ତ ହଁ ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଛି ଛଦ୍ମ ବ୍ୟାକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ସେ କି ଅର୍ଥ? ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା।
व्यवहारिक व्याकरण मुख्यतः कौ जिनिस आसुची ना मुख्यतः भाषा साहित्य विषय रे चर्चा करिवे विभिन्न शब्दर व्यवहार उपयोगी विषय विश्लेषण करबा को आपनकर कोन ना व्यवहारिक व्याकरण बोली कुहा गला। अज्ञात पद एवं अर्थर स्वत प्रतीत होइते व्यवहारिक व्याकरण आपनकर अज्ञात अर्थ एवं स्वत से गुडी को मध्य व्यवहार होइते। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही ताहा रही व्यवहारिक व्याकरण केशम विषयाणाम चर्चा होती व्यवहारिक व्याकरण रे केउ विषय मुख्यतः चर्चा होउची ना व्यवहारिक व्याकरण रे अनेक बार अनुशीलन द्वारा अज्ञात पद एवं तार स्वतः अर्थ विषय चर्चा करा जायते। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहारिक व्याकरण से अन्यत नाम किम व्यवहारिक व्याकरण अन्य गोटे ना छद्म व्याकरण आंग्ल भाषा में पारंपरिक अवस्था का होची पारंपरिक अवस्था होची पारंपरिक पद्धति आंग्ल रे माने आपनकर इंग्रजी रे पारंपरिक अवस्था को पारंपरिक पद्धति को कोन बोली कुआ गला पारंपरिक पद्धति को कुआ गला आपनकर कोन ना ट्रेडिशनल मेथड होची आपनकर कोन ना पारंपरिक प्रणाली रो अंगठी। ठीक अछि पेमेंट आंसर कोंतु पाठ्य पुस्तक प्रणाली आंग्ल भाषा किम कथ्यते प्रणाली को आपनकर इंग्रजी रे कोन कुआ जाउची कहबे एठी आपनकर राइट आंसर कोन रहउची पाठ्य पुस्तक प्रणाली को आपनकर इंग्रजी रे कोन कुआ जाउची तो बहुत बढ़िया कहबे एठी राइट आंसर कोन रहउची पाठ्यपुस्तक प्रणाली पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक मेथड मन रखते ये आपन राइट आंसर कौन रोचे टेक्स्ट बुक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा संस्कृत भाषा प्रोजेक्ट सिस्टम इति किम कथित प्रोजेक्ट मेथड अर्थ कौन प्रोजेक्ट मेथड अर्थ होची परियोजना प्रणाली मन रखते परियोजना प्रणाली रे आपन इंग्रजी रूपटी होची हाँ परियोजना प्रणाली इंग्रजी रूपटी होची आपन प्रोजेक्ट मेथड। पारंपरिक व्यवस्था एवं किम अर्थ पारंपरिक व्यवस्था अर्थ पारंपरिक पद्धतिर अर्थटी कौन अटे पारंपरिक पद्धतिर इंग्रजी रूपटी होची आपनकर ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक पद्धतिर अर्थ कौन ना पूर्वर कौन थिला ना विद्यार्थी माने शास्त्र ग्रहण करी से गुडी को मुखस्थ करुथिले व्याकरण शास्त्र सूत्र एवं से गुडी को उदाहरण गुडी को व्याख्या करी कंठस्थ करियो पड़थला सेति गोटे श्लोक मध्य रही अभ्यास सर्वशास्त्राणाम बोधात करियसी व्याकरण नियम गुडी कंठस्थ होइतिबारु आवश्यक स्थले स्वतः प्रवृत्त भावे से गुडी को स्वतः हुअन्ते बाहरी थांते। श्लोकटी मध्य रही पुस्तक स्थाया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने काश विद्या किम तद्धनम से आपनकर कोन थिला ना पारंपरिक प्रणाली रो गोटे अंश थिला। आई थिंक सामान्य नेटवर्क इशू रहउची ठीक अछि सुना जाउची देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे मिनिट हाँ सूत्राणाम कंठस्थीकरणम कस्मिन पद्धत्याम क्रियते सूत्र गुडी कंठस्थ करिया केउ पद्धतिर मुख्य अंश अटे से होची आपनकर पारंपरिक प्रणाली। गतानुगतिक कस्य पद्धति अन्यत नाम अस्ति गतानुगतिक पद्धति किए अटे ना गतानुगतिक होची आपनकर पाठ्य पुस्तक प्रणाली पूर्वर मध्य बही को फॉलो कराउतले एबी फॉलो कराउची ठीक अछि समस्त आंसर को मेंशन करिबा कस्मिन पद्धत्याम स्मृति शक्ति वर्धनेन स छात्राणाम प्रयोग व्यायाम क्रियन्ते कहबे एठी केउठारे पिलांकर कोन होची ना स्मृति शक्ति बढ़िबा सहित भाषा व्यवहार मध्य बढ़ुची प्रयोगात्मक अभ्यास मध्य वृद्धि पाउची सी होची आपनकर कोन ना पाठ्य पुस्तक बहुत बढ़िया बहुत जन आंसर आसुची आई थिंक विजय भट्टाचार्य किछि आई थिंक एटी किछि नेटवर्क इशू रहउची सेति पे एभली किछि रहउची पाठ्य पुस्तक विधि कस्य कृते हितम कस्य कृते न हितम जो पाठ्य पुस्तक पद्धति रहिला सेटा कहा पई मंगलदायक कहा पे अमंगलदायक उप माने भल पिला मानक पई कोन होची भल एवं खराब पिला मानक पई सुकर नहे यस्मिन् विधु आचार्य प्रथमम उदाहरणानि ददाति तत सूत्रांशाय गच्छति केउ विधि रे प्रारंभिक समय रे शिक्षक कोन करूची ना उदाहरण गुडी को देउची तापरे सूत्र आडकु जाउची जो विधि रे प्रारंभिक समय रे आचार्य कोन करूची उदाहरण दउची तापरे सूत्र आडकु जाउची सी आपनकर कोन अटे ना सी होची आरोह प्रणाली मन रखंतु आरोह पद्धति ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कस्मिन पद्धत्याम प्रथमम शास्त्राणाम नियमः सूत्राणि व्यवहारिक कौशलम च व्याख्यांते केउठी आपनकर प्रारंभिक समय रे प्रथमे शास्त्र नियम तापरे सूत्र गुड़िक एवं तापर व्यवहारिक कौन ना कौशल विषय दिया सी आपनकर कौन ना परियोजना प्रणाली प्रोजेक्ट मेथड यहाँ आपनकर कौन होची परियोजना आपन अवरोह पद्धति एवं परियोजना भितर एइटा ही आपनकर फरक रहउची अवरोह रे आपनकर कौन आसी फास्ट आपनकर कौन आसीबो सूत्रटा देबे तापर आपन शेष को उदाहरण आडकु जिबे एइठी कौन कहउची एइठी मध्ये समान फास्ट आपन नियमटी कहबे तापर सूत्र कहबे तार व्यवहारिक कौशल विषय पढबे आपनकर हला कौन ना परियोजना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन
आधुनिक विज्ञान भित्तिकम च प्रणाली का आधुनिक एवं विज्ञान भित्तिक प्रणाली किए आधुनिक एवं विज्ञान भित्तिक प्रणाली आपनकर होची एठी कोन आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली ह्यूरिस्टिक प्रणाली कस्मिन् प्रणाली छात्र प्रथम सैद्धांतिक ज्ञानम विषय अवगत होते केउठी पिलाटी कोन होची ना सैद्धांतिक ज्ञान विषय प्रारंभिक समय अवगत होची ए क्वेश्चन भी थिला सैद्धांतिक ज्ञान होची ह्यूरिस्टिक प्रणाली का प्रणाली अनुमानात्मक अवस्था अस्ति अनुमानात्मक अवस्था की अटे कहबे राइट आंसर कोन रहउची गत वर्ष थिला आपण ह्यूरिस्टिक प्रणाली संपर्क रे गोटे क्वेश्चन थिला का प्रणाली अनुमानात्मक व्यवस्था अस्ति बहुत बढ़िया अनुमानात्मक व्यवस्था की अटे मानक मध्यरु ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक क्वेश्चन नंबर देके लिखिबे तो टिके स्पष्ट होई परिबो माने टिके अधिक बुझा पड़िबो आंसर गुडी कोटार कोन के कहउचंती हां बहुत बढ़िया परियोजना प्रणाली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भाषा साहित्य पठन सहित व्याकरण पठनम इति का पद्धति भाषा पढ़िबा सहित ग्रामर पढ़िबा सी आपनकर कोन होता ना सी होची भाषा संसर्ग प्रणाली जेति आपन को 8th क्लास ग्रामर बहिटी ठीक अछि 8th क्लास ग्रामर बहिटी आपनकर भाषा संसर्ग प्रणाली संपर्क रे आंसर मान रहिछि भाषा साहित्य पढ़िबा सहित ग्रामर पढ़िबा ओडिशा देशे कया पद्धति व्याकरण पाठ्यत ओडिशा रे केउ पद्धति रे व्याकरण पढ़ा होछि ना आपनकर ओडिशा रे आपनकर मुख्यतः आरोह अवरोह पद्धति रे आपनकर कोन करा होछि ना शिक्षादान करा जाउछि संस्कृतेन लिखितम गणितम कस्मिन् देश अनुवाद कृत्वा पाठ्यते प्रारंभिक समय आपनकर संस्कृत रे जो हमर गणित थिला जो लीलावर्ती शास्त्र अछि जहा किछि मति आपनकर थिला प्रारंभिक समय रे ना ता कोन करा गेला केउ देश रे प्रारंभिक समय ताको अनुवाद करि पढ़ा जाइथिला कहबा एठी राइट आंसर कोन रहउछि सी होची आपनकर पारसी बा आपनकर अरब अरब देश रे पारसी देश रे आपनकर फास्ट कोन करा जाइथिला ताको गणित को पढ़ा जाइथिला ठीक अछि कस्मिन् देशे प्रथम बारम संस्कृतम पाठ दृष्ट केउठी फास्ट रे आपनकर संस्कृत पढ़ाइबा आरंभ करा जाइथिला तो राइट आंसर होची आपनकर जर्मन देश रे जर्मन रे आपनकर फास्ट गणित कोठी पढ़ा जाइथिला ना गणित आपनकर पारसी देश रे बा फारसी देश रे हितिला नेक्स्ट आपनकर पढ़ा जाइथिला कोन ना आपनकर संस्कृत रो प्रारंभिक समय रे पाठन आपनकर जर्मनी देश रे हितिला अनुवाद विधि निर्माता कह अनुवाद विधिर निर्माता की से डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर ए बुक ऑफ संस्कृत पुस्तक से रचनाकार सी होचन से महान व्यक्ति सी होचन डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर भंडारकर मते अनुवाद विधि कति प्रकार संति तेज के सी होची चारि प्रकार फास्ट आपनकर होची व्याकरण आधारित पाठ अभ्यास संस्कृत रु मातृभाषा अनुवाद मातृभाषा अनुवाद मातृभाषा संस्कृत अनुवाद ए प्रकार से चारि भाग रे भाग होईची ठीक अछि कदा वाक्य से अर्थ दुर्बोध भवति केतेबेले वाक्यर अर्थटी जानिबाकू कष्ट होई थाए कहबा एट राइट आंसर कोन होची केतेबेले दुर्बोध होची ना जेतेबेले व्याकरण जनित भ्रम सृष्टि होची सेतेबेले मन रखंतु एटी वाक्य से अर्थ दुर्बोध दुर्बोध अर्थ होची बुझिबा बुझा पड़ नथे केतेबेले ना जेतेबेले आपनकर व्याकरण जनित भ्रम सृष्टि होची सेठी आपनकर कोन होची ना वाक्यर अर्थटी जानिबारे कष्ट होची ठीक अछि माधुर्य भंग तथा अर्थबोध रे व्याघात हले आपनकर कोन होची ना व्याकरण जदि व्याकरण दृष्टि जदि आपण किछि भूल करछन ताले आपण से शब्दर अर्थ जानि परियेनी अनुवादकारी अनुवाद कार्य केन आधारेण क्रियते अनुवाद कार्य क्यों आधार रे करा जाई थाए कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची अनुवाद आज किपरि करा जाई थे ना प्रारंभिक समय रे क्रियान्वितम कारकं को अनुसरण करा जाई थे क्रिया अनुसार कर्तृपद को जोड़ी दिया जाई थे कर्तृपद को अनुसरण करिकी लिंग पुरुष वचन एमान को रखा जाई थे एवं परवर्ती समय रे कोन करा जाय समास संधि कृतंत एमान को जोड़ी दिया जाई थे ठीक अछि अनुवाद कार्य किपरि होची ना प्रारंभिक समय क्रियान्वितम कारकम लाइन परीक्षा रे थिला क्रियान्वितम किम क्रिया अनुसार कारक को जोड़िबा तापर क्रिया अनुसार आपण कोन करिवे ना कर्तृपद जोड़िबे तापर कर्तृपद अनुसार पुरुष वचन लिंग एमान को साइज रखिबे संधि समास जोड़ी के आपण करिवे एठी कया पद्धति छात्र से शिक्षक सृजन शक्ति वर्धते क्यों थिरे शिक्षक एवं छात्र उभयंकर कोन होची ना सृजन शक्ति बढ़ी थाए सी होची अनुवाद पद्धति रे शिक्षक एवं छात्र उभयंकर रचनात्मक कौशल रे वृद्धि होताउची भाषा शिक्षण विधि कति था भाषा शिक्षण विधि केते प्रकार भाषा शिक्षण होते होची दुई प्रकार गोटे होची कोन पारंपरिक आ होची आपनकर आधुनिक ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पद्धति संपर्क में कहूँ ना सरला पाखापाखि बहुत अल्प क्वेश्चन अच्छी प्रत्यक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति आपरे अन्वय पद्धति दंडान्वय खंडान्वय आरोह अवरोह ये क्वेश्चन केवल आप रहा ठीक अच्छे नेक्स्ट आप क्लास आप संस्कृत साहित्य जो कि आपंकर कौन पाइबे आपने स्वप्नवास बदतम रु आरंभ करके जहाँ रही जो संस्कृत 9 जन कवि पुंखानुपुंख क्वेश्चन आपको आज संध्या निश्चित रूप से मिल प्रयास करवा प्रत्यक्ष विधि अपर नाम किम प्रत्यक्ष विधि आउ गोटे ना कौन ना गोटे ना हूँ निर्बाध विधि तार गोटे ना ठीक अच्छे प्रत्यक्ष विधि कति सन्ति पद्धति कति सोपान सन्ति एक्चुअली प्रत्यक्ष पद्धति केतटा सोपान आपन रोचे ना प्रत्यक्ष पद्धति आपन सोपान संख्या रोचे 3टा मन रखु प्रत्यक्ष पद्धति सोपान संख्या होची 3 प्रत्यक्ष विधि तात्पर्य किम प्रत्यक्ष पद्धति तात्पर्य कौन प्रत्यक्ष पद्धति तात्पर्य होची जो भाषा को आपन जेपरि पढौछन जो भाषा आपन पढौछन्ती सेही भाषा द्वारा ही पढैबा ता होची आपन प्रत्यक्ष पद्धति वास्तविक रूप से अर्थ तात्पर्य अटे माने संस्कृत पढौछन संस्कृत संस्कृत रे पढैबे प्रत्यक्ष विधि पूर्व केन विधिना गद्य शिक्षण क्रियमाणम आसीत् प्रत्यक्ष पद्धति पूर्व आपनकर केउ पद्धति रे आपनकर गद्य शिक्षण चलीथिला से प्रत्यक्ष पद्धति पूर्व आपनकर जदि केउ पद्धति जदि आपनकर गद्य शिक्षण होतला आ ताहा होची आपनकर कोन सी होची आपनकर हर्बटीय पंच पद्धति द्वारा या पूर्व आपनकर गद्य शिक्षण चलथिला कोन कोन पांचटा सोपान थिला सेठी ना से कहिथिले प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण प्रयोग ए भाव से कोन करथिला पांच भाग रे थिला आ सी की थिले तार स्रष्टा किए थिले ना तार थिले स्वयं हर्बटीय तांकर पांचटा पद्धति के नेकी से कहिथिले सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रस्तुति शब्द से आंग्ल रूपम कि प्रस्तुति शब्दटी आपनकर इंग्रजी टर्मटी कोन अटे प्रस्तुति शब्दटी आपनकर इंग्रजी शब्दटी होची ना प्रिपरेशन ठीक अछि प्रस्तुति शब्द आपन इंग्रजी शब्दटी कोन अछि ना प्रिपरेशन आपनकर शब्दटी अटे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे मिनिट हां उपस्थापना इति शब्द से आंग्ल रूपम किम उपस्थापना शब्दटी आपनकर इंग्रजी रूपटी कोन अटे उपस्थापना शब्दटी आपनकर इंग्रजी रूपटी कोन अटे सी होची आपनकर प्रेजेंटेशन ठीक अछि जानि छथि गुडी किछ कहबा कष्ट माने किछ कष्ट माने अधिक चर्चा करिवार आवश्यकता नहे तो देखिबा तुलना शब्द से आंग्ल रूपम किम तुलना शब्द आंग्ल रूपटी कोन अटे तो नेक्स्ट देखिबा तुलना शब्द आपनकर होची कंपैरिजन तापर आत्म साक्षात्कार अर्थ होची आत्मीकरण आत्मीकरण रो आपनकर इंग्रजी शब्द कोन अटे ना सी होची असिमिलेशन प्रयोग शब्द आंग्ल रूपटी कोन अछि सी होची आपनकर एप्लीकेशन उपक्रम इति शब्द से आंग्ल रूपम किम उपक्रम शब्द आपनकर आंग्ल रूपटी कोन अटे ना सी होची आपनकर इंट्रोडक्टरी उपस्थापना शब्द से आंग्ल रूपम प्रेजेंटेशन प्रयोग शब्द होची आपनकर एप्लीकेशन अच्छा देन क्वेश्चन आसला टिके आपनकर उपक्रम सोपान किम क्रियते उपक्रम सोपान रे आपनकर कोन करा जाई थाए उपक्रम सोपान रे आपनकर कोन करा जाई थाए बहुत बढ़िया उपक्रम सोपान रे आपनकर कोन उपक्रम सोपान रे आपन क्लास को सजेइबे पिलांकर ज्ञान परीक्षा करिवे पूर्व ज्ञान परीक्षण करिवे एवं एठी आपण माने नूतन विषय को जोड़िबा पूर्व आपण पिलांको किछ नुवा ज्ञान देबे कस्मिन चरण कवि लेखक से परिचय प्राप्त बनती केउठी आपण कवि एवं परिचय विषय प्राप्त होछि ना सी होछि आपनकर उपक्रम सोपान रे आचार्य कस्मिन स्तर आदर्श पाठम करोति केउठी आदर्श पाठ होछि ना सी होछि आपनकर उपस्थापना रे कस्मिन चरण छात्र उच्च पठति ना सी मते आपनकर उपस्थापना रे शिक्षा या अंतिम सोपानम किम शिक्षार अंतिम सोपान होछि आपनकर मूल्यांकन वा प्रयोग यस्य चरण से अंतर्गत गृह कार्य दत्ता वर्गम त्यक्त्वा गमनम अस्ति वर्गम अर्थात होछि क्लास को क्लास छाड़ी की शिक्षक जाए सी होछि आपनकर प्रयोग प्रयोग रे टीचर कोन करूछि ना आपनकर किछि क्वेश्चन से सेठी दे देबो क्वेश्चन देकी से क्लास छाड़ी की जीवो कस्मिन चरण शब्द ज्ञान मापनम व्याकरण आधारित केचन प्रश्न पृच्छन्ति केउ चरण रे आपनकर चरण अर्थ सोपान रे केउ सोपान रे शब्द ज्ञान मापन करा होछि व्याकरण आधारित किछि प्रश्न पचरा होछि सी मध्ये होछि आपनकर प्रयोग रे ठीक अछि व्याकरण आधारित किछि प्रश्न पचारिबे किछि क्वेश्चन आंसर करिकि जिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गद्य शिक्षण से उत्तम विधि की गद्य शिक्षण उत्तम विधि होछि आपनकर प्रत्यक्ष विधि चतुर्ष कौशलेषु केन विधिना सफलता भवति चारिटा कौशल केउ विधि आपण सफल चारटा चतुर्ष कौशलेषु केन विधिना सफलता भवति चारटा कौशल सफलता आपण केउ विधि मिलुछि सी होछि आपनकर प्रत्यक्ष विधि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष एतस्य पूर्व का पद्धति प्रचलित आसीत प्रत्यक्ष पद्धति पूर्व केउ पद्धति आपनकर प्रचलित थिला तो प्रत्यक्ष पद्धति पूर्व आपनकर जो पद्धति प्रचलित थिला सी होछि हर्बटीय पंच पद्धति पांचटा पद्धति ना कहि दैछि प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण प्रयोग ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
प्रत्यक्ष विधेय बालः सामान्य किसी काम थिला तो कहबा प्रत्यक्ष विधेय बालः कथम भाषा ज्ञान प्राप्नोति भाषा ज्ञान से किपरि पाई थाए कहबा एटी राइट आंसर कोन रहउची कहबा एटी पिलाटी किपरि पाउची ना तार भाषा ज्ञान किपरि पाउची ना प्रत्यक्ष पिलाटी कौन करुच्ची ना चार्टे जा कौशल को प्रयोग करिकी से तार भाषा ज्ञान को पाई माने प्रत्यक्ष पद्धति से तार श्रवण भाषण पठन लेखन चार्टा जा से करुच्ची कान प्रयोगम कृत्वा छात्रान पाठनीयम क्यों क्या व्यवहार करके प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ाइबा दरकार तो ये आपन राइट आंसर होची ना दृश्य श्रव्य उपकरणान प्रयुज्य कुत्र अत्यंत उपयोगी वर्तते प्रत्यक्ष पद्धति केउठारे एई प्रत्यक्ष पद्धति अत्यंत उपयोग अटे से होची आपन कोन प्राथमिक स्तर रे प्रत्यक्ष पद्धति काम अपि भाषा बोधयितुम कस्य प्रयोग न करणीय मातृभाषा प्रत्यक्ष पद्धति जदि आपण कोनोसी भाषा को पढौचंती ताले सेठी मातृभाषार प्रयोग करिबेनी कयो साख्या संबंध संस्थाप्य पाठयते कार संख्या संपर्क रखी पढ़ाइबा दरकार ना एठी होची आपनकर शब्द शब्दार्थ शब्द एवं शब्दर अर्थ को व्यवहार करके पढ़ाइबा दरकार संस्कृत शिक्षण विधेय प्रयोग सर्वप्रथम कह कदा कृतः तो याको केबे की करथिल ना प्रोफेसर वकील महोदय 1956 रे याको प्रत्यक्ष पद्धति को प्रयोग करथिले कस्मिन् पुस्तके प्रोफेसर वकील मोह भागेन प्रत्यक्ष विधि उपयोगिता वर्णनम संपूर्ण सम्यक रूपेण प्रतिपादित क्यों बही रे से कौन करथिले ना प्रत्यक्ष पद्धतिर महानता को दर्शाइथिले कहबा एठी राइट आंसर कोन रहबे तांको द्वारा रचना करैथे बहीटिर ना कोन ए न्यू टू अप्रोच संस्कृत बोली बहीटिर से कौन करथिले ना एही प्रत्यक्ष पद्धतिर विषय वर्णना करथिले पुणी थर बही ना मन रखନ୍ତୁ ए न्यू बुक टू अप्रोच प्रत्यक्ष पद्धति विरोध कह आसी प्रत्यक्ष पद्धति विरोधी थिले भंडारकर एवं तांकर जो दुई जन अनुगामी शिवराम आप्टे मन तांकर कोन थिले ना कोन थिले ना विरोध करथिले संस्कृत भाषा ज्ञाता तो अज्ञातम सरलात कठिनम प्रति कस्या पद्धति गुणः ज्ञातरु जानिथिबा जिंसरु अजणा जिंसु जिबा सरलरु कठिन को जिबा काହାର अंश अटे नै होची आपनकर प्रत्यक्ष पद्धतिर अंश कया विधि ना संस्कृत शिक्षण से गति मंदा होती संस्कृत शिक्षण गति कोडे मंद होबा ना सी होची आपनकर प्रत्यक्ष ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रतिभाशाली ना छात्र उपकृत भवंती कुत्र तो प्रतिभाशाली छात्र माने केउठार उपकृत होई थांती तो प्रतिभाशाली छात्र माने उपकृत होंती आपनकर केवल प्रत्यक्ष पद्धति ठीक अछि उभयंक पई हेले आपनकर परोक्ष पद्धति प्राथमिक स्तरे का अनुपयुक्त पद्धति होती प्राथमिक स्तरे केउ पद्धति आपनकर अनुपयुक्त होउची तो कहबे एठी आपन प्राथमिक स्तर आपनकर अनुपयुक्त पद्धति सी होची आपन प्रत्यक्ष परोक्ष पद्धति द्वारा कस्य शिक्षण प्रचलति परोक्ष पद्धति द्वारा आपनकर काहर शिक्षण चालुची ना परोक्ष पद्धति द्वारा आपनकर शिक्षण चालुची पद्य पद्य हाँ प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा गद्य पाठ नेन पद्य से किम नश्यते प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा जदि आम पद्य पढ़ेबा ताले पद्यटीर कौन नष्ट हेबो ना रस उत्पादन रस अर्थ होची पद्यटीर जो भावार्थ रही से होची आपनकर कोन एठी ना रस उद्दीपक भावार्थ नष्ट होई थाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा पद्यपाठ पद्यस्य किम नश्यते ना पद्यस्य रस उद्दीपक नश्यते नेक्स्ट क्वेश्चन स्मरण शक्ति चिंतन शक्ति अभिवृद्धि कया पद्धति द्वारा होती स्मरण एवं चिंतन शक्ति अभिवृद्धि केउ पद्धति द्वारा होची ना सी होची आपनकर परोक्ष पद्धति ठीक अछि उभय केंद्रित अर्थात छात्र केंद्रित शिक्षक केंद्रित पद्धति कोटा ना सी होची आपनकर परोक्ष पद्धति का ज्ञाता तो अज्ञातम प्रति गच्छति ज्ञाता डोकी जाउची ना सी होची आपनकर परोक्ष पद्धति प्रत्येक स्तरस्य छात्रा उपकृता भवन्ति प्रत्येक स्तर छात्र उपकृत होचंती परोक्ष पद्धति रे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पादित स्मरण शक्ति अपेक्षा अभ्यास जन्य स्मरण शक्ति चिरम तिष्ठति एटा ଗୋଟେ स्टेटमेंट ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गुरु शिष्य मध्य समीचीन संबंध कस्याम पद्धत्याम भवति गुरु शिष्य भीतर सठिक संपर्क केउ पद्धति रहउची से होची आपनक परोक्ष पद्धति निरसा पद्धति का निरसा पद्धति के ना से होची आपनकर ए परोक्ष पद्धति ठीक अछि
संस्कृत भाषायां कविताकृति पद संयोजन किम उच्यते संस्कृत भाषा रे कविता आकृतिर पद संयोजन को कौन कहुच्छी ना सी हूँ आपको श्लोक बोली कहुए श्लोके पाद संख्या 4 श्लोक पाद संख्या हूँ आप 4टा अन्य पद्धति कुत्र आवश्यक अन्य पद्धति आप श्लोक पढ़ाइबा समय आवश्यक होता है भाव अवगहनाय कर्तुकर्म क्रियादीनां क्रमेण संस्थापनम नाम किम भाव बुझिया कर्तुकर्म क्रिया मानकर क्रम स्थापन करिवो कौन कहुच्छी ना ताकू आला अन्वय कया पद्धतिया साहित्यम पद्य पाठनम सुगमम भवति साहित्य पद्य पाठन आपन को ठीक रहउची सी होची आपन अन्वय पद्धति ठीक अछि तापरे देखिबा तापरे आपन आरोह अवरोह आसीबो नेक्स्ट अछि देखिबा विशेषणम पुरस्कृत्य विशेषम तदनंतरम कर्तुकर्म क्रिया युक्तेन अन्वय लक्षणम अन्वय रि होची लक्षण आपन फास्ट विशेषण पुरस्कृत्य फास्ट रखी तापरे विशेष्य पद को रखिबे तापरे कर्तुकर्म क्रिया इत्यादि को जोड़ी की जहा करा गला ताकू वाला अन्वयर लक्षण अटे होटे हां एगुड़ी केवल आपनकर लाइन गुड़ी रही से गुड़ी आप मन रखी दिंतु सोपान कौन कही ना फास्ट आप कर्ता क्रिया पुरुष वचन को साइज रखिए कर्मपद विशेषण असमीपिक क्रिया इत्यादि आप परवर्ष जोड़ी हूँ अन्वयर लक्षण अन्वय पद्धति कतिविधम अन्य पद्धति हूँ दी प्रकार गोटे हूँ दंडान्वय अटे हूँ खंडान्वय आदो विशेषण युज्यम विशेषम तदनंतरम दंडान्वय पद्धति लक्षण टी कही ठीक अच्छे कौन कही आदो विशेषण युज्यम फास्ट आप विशेषण जोड़े विशेष्य जोड़े प्रत्यय गुड़ी त्वा तमुन लमुन प्रत्यय को जोड़ा ये हूँ दंडान्वय पद्धति लक्षण कया पद्धतिया पद्य से सम्यक ज्ञान प्राप्यते क्यों पद्धति द्वारा आपणकर कही कौन ना पद्यर सम्यक ज्ञान प्राप्ति होता है कहबे आप राइट आंसर कौन रोचे क्यों पद्धति द्वारा आपणकर पद्यर सम्यक ज्ञान प्राप्ति होची आपन अन्य पद्धति ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा दंडान्वय नाम किम दंडान्वय पद्धतिर नाम कौन ना दंडान्वय अर्थ होची श्लोकर अर्थ को वाक्य सजाइबा को दंडान्वय कहा जाए ठीक अछि दंडान्वय विधौ कीदृशा प्रश्न भवन्ति दंडान्वय पद्धति आपण केउ प्रकार प्रश्न रहिला दंडान्वय पद्धति आपनकर व्याकरण आधारित प्रश्न गुडी रहନ୍ତି खंडान्वय पद्धतिया नामांतरम किम खंडातिर आ गोटे ना कौन अटे ना से आपनकर प्रश्न उत्तर पद्धति पदच्छेद पद्धति बोली मध्य कहा जाए मनोवैज्ञानिक पद्धति का सी हूँ आपनकर खंडान्वय पद्धति ठीक अच्छे तो ये आज किसी क्वेश्चन आशा कर समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे संपूर्ण सिलेबस को कभर हो गला तो पुणी थे संस्कृत साहित्य व्याकरण संपर्क गोटे वीडियो डिस्कशन करके सारीदे रोचे पुणी थे नेक्स्ट क्लास मिसिबा बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने अटेंड करते